آپ کے دوست ہیں؟ نائلہ نے پوچھا۔ یہ صاحب دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے دشمن۔ یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمن کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتے ہیں اور فری لانسر ہیں۔ مختلف کیسز میں حکومت ان کی خدمات حاصل کرتی رہتی ہے۔ یہ اسپیشل فورس کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور حکومت کی ایک اور ایجنسی 4 اسٹارز کے لیے بھی۔ انتہائی ذہین اور تیز ترین آدمی ہیں، لیکن بظاہر بڑے معصوم اور بھولے بھالے آدمی ہیں۔ صدیقی نے باقاعدہ عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، احمد رضا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر وہ واقعی اس جعلی کرنسی کے کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ جو واقعی اس چکر میں شریک ہے اس کی موت آ گئی ہے، اور جو بے گناہ ہے اس کے تو وہ سب سے بڑے محافظ ہیں۔ ان کے تعلقات اس قدر وسیع ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ملک کے صدر کو بھی یہاں بلا لیں۔ صدیقی نے کہا تو احمد رضا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن رہتے فلیٹ میں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نائلہ رضا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عمران کے ذات کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے بہن، وہ بس ایسے ہی آدمی ہیں، عجیب و غریب متضاد صفات کے مالک ہیں، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور نائلہ کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہو گئے جیسے اس کے دل میں عمران کو دیکھنے کا شدید اشتیاق پیدا ہو گیا ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب آگے، آئیے ان کا پورچ میں استقبال کریں، صدیقی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نعمانی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہم بھی؟ نائلہ نے چونک کر پوچھا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہیں رہیں، چاہیں تو ساتھ آ جائیں، صدیقی نے کہا تو نائلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ رضا، نائلہ نے رضا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم جاؤ، میں بیٹھا ہوں، احمد رضا نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ارے آؤ بھی صحیح، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ دوستوں اور بھائیوں جیسا سلوک کر رہے ہیں اور تم اب بھی خوفزدہ ہو رہے ہو، نائلہ نے رضا سے کہا اور بازو سے پکڑ کر احمد رضا کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور پھر دونوں چلتے ہوئے باہر پورچ میں آ گئے، جہاں اس وقت ایک نئے ماڈل کی خوبصورت سپورٹس کار رک رہی تھی۔ صدیقی اور نعمانی دونوں ہی پورچ میں کھڑے تھے، وہ دونوں برآمدے میں ہی رک گئے، اور اسی لمحے کار کا دروازہ کھلا اور نائلہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کار میں سے اترنے والا آدمی انتہائی وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی معصوم چہرے کا مالک تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ واہ، یہ 2 منزلہ استقبال بہت خوب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے مڑ کر برآمدے میں کھڑے احمد رضا اور نائلہ رضا کو کھڑے دیکھا تو وہ دونوں بھی اختیار ہنس پڑے، کیونکہ واقعی استقبال 2 منزلہ ہو رہا تھا۔ نعمانی اور صدیقی نیچے کھڑے تھے، جبکہ نائلہ رضا اور احمد رضا اوپر برآمدے میں موجود تھے۔ یہ احمد صاحب ہیں جو انسپکٹر توفیق کے تشدد کا نشانہ بنے ہیں، اور یہ ان کی بیگم ہے نائلہ رضا، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ عمران سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ خوش قسمت آدمی پر کبھی کبھی یہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ مسٹر احمد رضا، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے احمد رضا کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے سر جھکا کر نائلہ کو بھی سلام کر دیا۔ میں کیسے خوش قسمت ہو سکتا ہوں جناب، مجھ پر تو عذاب ٹوٹ رہا ہے، احمد رضا نے بڑے ڈھیلے سے انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میری بہن نائلہ کو اپنی بیوی بنا لینے کے باوجود ابھی تک خوش قسمتی سے انکار کر رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نائلہ کا چہرہ بھی اختیار کھل اٹھا، اور احمد رضا کے چہرے پر بھی چمک سی آ گئی، لیکن وہ صرف مسکرا دیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے صدیقی نے جو کچھ فون پر بتایا تھا اس سے زیادہ مجھے آپ کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ قطعی بے فکر رہیں، آئندہ آپ کی طرف کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے گا اور آپ پر تشدد کرنے والوں کا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عمران نے احمد رضا کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ درندے ہیں جناب، درندے، میں کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نائلہ کی موجودگی میں تفصیل نہیں بتا سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ وحشی درندوں سے بھی بدتر ہیں، احمد رضا نے کہا۔ آپ کی حالت دیکھ کر پتہ چل رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ عمران صاحب، آپ بھی جعلی کرنسی کے کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں، مجبوری ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ میرا ایک ہی فنانسر ہے سپر فیاض، اور وہ آج کل اس کیس پر کام کر رہا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ فیڈرل ایجنسی نے بینک کا آدمی پکڑا تھا جسے اسپیشل فورس کے آدمی لے گئے ہیں، عمران نے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیاض صاحب نے تو کوئی خاص کلو تلاش کر لیا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ نہیں، اس کا کام ابھی آگے نہیں بڑھ رہا، لیکن اب ایک کلو احمد رضا صاحب کے ذریعے سامنے آیا ہے، عبدالصمد کیشر والا۔ ادھر ٹائیگر بھی اس کیس کے سلسلے میں ایک اور رخ پر کام کر رہا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی صحیح لائن آف ایکشن مل جائے گی، عمران نے کہا تو صدیقی اور نعمانی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔
احمد رضا صاحب، کیشیئر عبدالصمد کتنے عرصے سے اس برانچ میں کام کر رہا ہے؟ عمران نے احمد رضا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تو اسے جانتا بھی نہیں عمران صاحب، پہلے مین برانچ میں کام کرتا تھا، صرف 1 ہفتہ پہلے میری ٹرانسفر کینٹ برانچ میں ہوئی ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کیشیئر ہے اور 1 ہفتے کے دوران اس سے صرف کام کے سلسلے میں باتیں ہوئی ہیں، احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نعمانی، تم احمد رضا اور ان کی بیگم کو ان کے فلیٹ چھوڑ آؤ، احمد رضا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں آرام کرنا چاہیے، اور احمد رضا صاحب آپ بے شک 2-3 دن روز آرام کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر جائیں۔ وہاں اگر آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرے تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے اور بس، مزید کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، عمران نے کہا، اور احمد رضا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ کیا میں واقعی گھر جا سکتا ہوں؟ احمد رضا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم آزاد ہو، تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ کیوں صدیقی؟ عمران نے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل عمران صاحب، صدیقی نے کہا۔ اوہ، آپ کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں سے مل کر ایک بار پھر سچائی پر یقین آنے لگ گیا ہے، ورنہ میرا تو یقین ہی اٹھ گیا تھا، احمد رضا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ سب صاحبان کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، نائلہ رضا نے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ ارے آپ اتنی بھی بڑی بری نہیں ہیں کہ اس طرح دعائیں دینا شروع کر دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نائلہ رضا بھی اختیار ہنس پڑی۔ آئیے، نعمانی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر احمد رضا اور نائلہ عمران اور صدیقی کو سلام کر کے نعمانی کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران صاحب، میں چیف کو رپورٹ دے دوں، پھر آپ سے بات ہوگی۔ ان کے باہر جانے کے بعد صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چیف کو رپورٹ؟ کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ 4 سٹارز کے چیف تم خود ہو، کیا آپ کوئی نیا چیف پیدا ہو گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 4 سٹارز کا چیف تو میں ہوں، لیکن اسپیشل فورس کا چیف X2 ہے۔ احمد رضا کو فیڈرل ایجنسی کے پنجے سے نکالنے کے لیے مجھے چیف سے بات کرنی پڑی۔ چیف نے سر سلطان کو حکم دیا، سر سلطان نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، اور ڈائریکٹر فیڈرل ایجنسی نے انسپیکٹر توفیق کو حکم دیا تو احمد رضا وہاں سے باہر آیا، اس لیے اب چیف کو تو رپورٹ دینا پڑے گی، صدیقی نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صدیقی نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں جناب، بینک کے اسسٹنٹ مینیجر احمد رضا کو میں اور نعمانی فیڈرل ایجنسی کے سینٹرل پوسٹ سے اپنی تحویل میں لے آئے تھے، اور وہ بے گناہ محسوس ہوا ہے۔ اصل میں مجرم اس بینک کا کیشیئر عبدالصمد تھا، جسے اس احمد رضا نے گڈیوں میں جعلی نوٹ لگاتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ وہ گڈیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ احمد رضا نے بینک مینیجر کو سب کچھ بتا دیا۔ بینک مینیجر نے تحقیقات کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد فیڈرل ایجنسی نے چھاپہ مار کر احمد رضا کو جعلی کرنسی کی گڈی خود ہی لا کر اس کی میز کے دراز سے برآمد کر کے گرفتار کر لیا، اور اسے اپنی پوسٹ پر لے آئے۔ وہاں اس پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا گیا اور اسے زبردستی اعتراف جرم کرایا گیا۔ بقول احمد رضا اس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نے اسے بتایا کہ کیشیئر عبدالصمد اس انسپیکٹر توفیق کا بھتیجا ہے، اور عبدالصمد بینک سے سیدھا انسپیکٹر توفیق کے پاس پہنچا، اور انسپیکٹر توفیق نے فوراً ہی احمد رضا کو پکڑ لیا۔ عمران صاحب سپرنٹینڈنٹ فیاض کی وجہ سے اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس سینٹرل انٹیلیجنس میں ڈیل کر رہی ہے۔ عمران صاحب نے بھی احمد رضا سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے اسے واپس گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عمران صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا شاگرد ٹائیگر بھی ایک اور رخ پر اسی جعلی کرنسی کے سلسلے میں ہی کام کر رہا ہے۔ صدیقی نے بغیر کسی تمہید کے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جعلی کرنسی کا کیس انتہائی اہم ہے، تم 4 سٹارز کے تحت اس کیس پر باقاعدہ کام کرو، دوسری طرف سے چیف نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چیف نے آپ کے اس کیس پر کام کرنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، صدیقی نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے نوٹس لیتا؟ اسے چیک تو دینا پڑ جاتا، اب اس کا کام مفت میں ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صدیقی بھی اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، اب تو اس کیس پر باقاعدگی سے کام کرنا پڑے گا، صدیقی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس لائن پر کام کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا تو اس انسپیکٹر توفیق کو اسے گھر سے اغوا کر کے یہاں لایا جائے، یا پھر اس عبدالصمد کو، فی الحال تو یہی 2 آدمی سامنے نظر آتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ یہ دونوں چھوٹی مچھلیاں ثابت ہوں گی، صرف کیریئر ہیں،
میں تمہیں ایک لائن آف ایکشن دیتا ہوں۔ ٹوائز لینڈ کھلونوں کے ایک سپر شاپ ہے، اس کا مالک ہے سیٹھ اسلم۔ وہ گزشتہ 4-5 سالوں میں یک لخت امیر ہو گیا ہے۔ تم اسے چیک کرو، لیکن خیال رکھنا اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف ایک اندازہ ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ بے گناہ ہو اور تم بھی اس کے ساتھ ہی وہی سلوک شروع کر دو جو انسپکٹر توفیق نے بیچارے احمد رضا کے ساتھ کیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو سیٹھ اسلم پر کیسے شک ہے؟ صدیقی نے کہا تو عمران نے ہوٹل عالی شان میں اس کے سپروائزر اسد علی سے ملاقات اور پھر اس سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ لیکن جب فیاض نے آپ کو خود بتایا ہے کہ وہ صرف اسے ٹریپ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا تو پھر آپ اس پر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ دارالحکومت میں تو لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے جو کاروبار چل جانے پر سالوں میں امیر بن گئے ہوں گے۔ صدیقی نے کہا، سپر فیاض اتنا احمق آدمی نہیں جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اسے لازماً کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو ملا ہوگا، لیکن چونکہ سیٹھ اسلم کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، اس لیے فیاض اپنے بچاؤ کے لیے اسے ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب ایسا نہیں ہو سکا تو وہ اصل بات بھی چھپا گیا تاکہ کل کو اس پر کوئی حرف نہ آئے۔ بہرحال چیکنگ میں تو کوئی حرج نہیں، تم اس کا ٹیلی فون ٹیپ کراؤ، اس کے ملنے جلنے کی نگرانی کراؤ۔ اگر وہ کسی نہ کسی طور پر ملوث ہوگا تو کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی بات سامنے آ گئی تو پھر اس پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، وہ کسی حد تک بڑی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صدیقی نے کہا، بقول سپر فیاض فیڈرل بینک کو مسلسل شکایات مل رہی ہیں کہ بینکوں کی گھڑیوں سے جعلی نوٹ نکل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی خاص کیس کو سینٹرل انٹیلیجنس کو ریفر نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ فیڈرل بینک بینکوں کی ساکھ بچانے کے لیے معاملات کو اوپر نہیں کر رہا، کیونکہ اگر یہ خبر پریس میں آ جائے تو ملک میں معاشی طوفان آ جائے گا اور یہ بینکوں پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی کرنسی سے بھی، اور اس کا نتیجہ تم جانتے ہو۔ عمران نے کہا، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں؟ صدیقی نے کہا، ہاں، میرا خیال یہی ہے۔ فیڈرل بینک کا ایک ذمہ دار آفیسر میرا واقف ہے، میں اسے ٹٹولنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم کلو مل جائے۔ عمران نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کے گھنٹے بجتے ہی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس ادھیڑ عمر آدمی نے سرد لہجے میں کہا، رابرٹ بول رہا ہوں سر، آپ کو ایک اہم رپورٹ دینی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آ جاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ پھر تقریباً 15 منٹ بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، باس نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا اور انداز اور چال سے وہ کوئی کھلاڑی لگ رہا تھا۔ اس نے اس ادھیڑ عمر باس کو سلام کیا اور پھر میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا اہم رپورٹ ہے؟ باس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، اسپیشل فورس ہمارے خلاف حرکت میں آ چکی ہے، اس نوجوان جس کا نام رابرٹ تھا نے کہا تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ اسپیشل فورس؟ کیا مطلب؟ اس نام کی تو کوئی ایجنسی پاک ایشیا میں نہیں ہے، باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی خفیہ ایجنسی لگتی ہے، اس لیے تو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، رابرٹ نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، فیڈرل ایجنسی کے سینٹرل پوسٹ کا انچارج انسپکٹر توفیق کا بھتیجا ہمارا خاص آدمی ہے، عبدالصمد، یہاں کے سینٹرل بینک کی کینٹ برانچ میں کام کرتا ہے۔ ہمارے پلان کے مطابق وہ بینک کی نوٹوں کی گڈیوں میں جعلی نوٹ لگاتا تھا کہ اچانک اس بینک کے اسسٹنٹ مینیجر احمد رضا نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ عبدالصمد وہاں سے فرار ہوا اور سیدھا انسپکٹر توفیق کے پاس پہنچ گیا۔ انسپکٹر توفیق کو بھی ہم نے خریدا ہوا ہے، اس لیے انسپکٹر توفیق نے وہاں چھاپا مارا اور اس احمد رضا پر جعلی کرنسی ڈال کر اسے گرفتار کر لیا، اور پھر اسے اعتراف جرم کرا کر چند نام اس کے اعتراف جرم میں ڈال دیے جو ہمارے عام سے آدمی تھے، اور انہیں منزل سے ہٹا دیا۔ انسپکٹر توفیق کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس طرح عبدالصمد بھی بچ جائے گا اور اس کی کارکردگی بھی بن جائے گی کہ اچانک اسپیشل فورس کے 2 آدمی اس کے آفس آ پہنچے، اور پھر اس کے ڈائریکٹر جنرل کا فون آ گیا کہ احمد رضا اور اس کی فائل
اسپیشل فورس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ انسپکٹر توفیق کچھ بھی نہ کر سکا اور اسپیشل فورس والے اس احمد رضا اور اس کی فائل لے کر چلے گئے۔ انسپکٹر توفیق نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے ڈائریکٹر جنرل کے آفس میں موجود اپنے آدمیوں سے حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ اسے سیکرٹری وزارت خارجہ سید سلطان نے فون کر کے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب ظاہر ہے احمد رضا سے انہوں نے اصل بات معلوم کر لینی تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر عبدالصمد کو ہلاک کرا دیا اور اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کرا دیا۔ اس طرح یہ لائن تو بند ہو گئی، لیکن مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ اسپیشل فورس والے ہمارے کلو پر نہ چل پڑیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو رپورٹ دے دوں، رابرٹ نے کہا۔ وزارت خارجہ کا تو کسی ملک کی خفیہ فورس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ان کا تعلق تو خارجہ معاملات سے ہی ہوگا، لیکن یہ تو واقعی معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ اسپیشل فورس کیا ہے، کیونکہ ہم تو اپنا میجر آپریشن عنقریب کرنے والے ہیں۔ باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، اگر آپ حکم دیں تو اس سیکرٹری کو اغوا کر کے اسے معلومات حاصل کی جائیں، رابرٹ نے کہا۔ احمق ہو گئے ہو، اتنے بڑے افسر پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ پورے ملک کی ایجنسیاں ہمارے خلاف حرکت میں آ جائیں گی۔ ہمیں کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا، باس نے کہا۔ پھر آپ چیف باس کے نوٹس میں یہ بات لے آئیں، وہ یقیناً اس کا کوئی کلو معلوم کر لیں گے، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات چیف باس کے نوٹس میں نہیں لائے جا سکتے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کسی نہ کسی ذریعے سے اس بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، باس نے کہا تو رابرٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو باس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹوائز لینڈ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیٹھ اسلم سے بات کرائیں، میں سیٹھ سلامت بول رہا ہوں، باس نے روبدار لہجے میں کہا۔ جناب، سیٹھ صاحب آج اپنی رہائش گاہ پر ہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں کال کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، باس نے کہا اور کریڈٹ دبا کر اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر ٹون آ جانے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسلم لاڈج۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سیٹھ اسلم سے بات کرائیں، میں سیٹھ سلامت بول رہا ہوں، باس نے کہا۔ ہولڈ آن کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیٹھ اسلم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سیٹھ سلامت بول رہا ہوں سیٹھ اسلم، باس نے کہا۔ آپ؟ خیریت؟ کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسپیشل فورس ہمارے پیچھے لگ گئی ہے، کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ باس نے کہا۔ اسپیشل فورس؟ یہ کون سی ایجنسی ہے؟ میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، سیٹھ اسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا تعلق سیکرٹری وزارت خارجہ سے ہے، کیا تم ان کے آفس سے اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ باس نے کہا۔ او نہیں، آج تک اس آفس سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا اور نہ کبھی ضرورت پڑی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ سیٹھ اسلم نے کہا۔ فون پر یہ بات بتائی نہیں جا سکتی، ملاقات ہونے پر ذاتی طور پر بتاؤں گا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم اس بارے میں لازماً کچھ نہ کچھ یا تو جانتے ہو یا معلوم کر لو گے، باس نے کہا۔ وزارت تجارت اور وزارت خزانہ میں تو میرے آدمی ہیں، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سیٹھ اسلم نے کہا۔ اپنے آفس سے، باس نے کہا۔ اوکے، میں معلوم کرتا ہوں، 1 گھنٹے بعد فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا اور باس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور اٹھ کر عقبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور دوسری طرف موجود ریٹائرنگ روم نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ خود بخود اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ باس نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ پینل کے نچلے حصے پر موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو پریس کیا اور سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی دروازے پر ایک فولادی چادر چھت سے اتر کر زمین میں غائب ہو گئی۔ باس آگے بڑھا اور اس نے دائیں ہاتھ پر موجود دیوار کے ایک حصے پر دایاں ہاتھ رکھ کر اسے مخصوص انداز میں دبایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے بایاں ہاتھ عین اس جگہ پر رکھا اور پھر اسے بھی آگے مخصوص انداز میں دبا دیا۔
اس کے ساتھ ہی سرر کی آواز کے ساتھ دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں غائب ہو گئی۔ وہاں اب دیوار کے اندر ایک سیف نظر آنے لگ گیا۔ باس نے سیف کے درمیانی حصے میں پہلے کی طرح اپنا دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ رکھ کر دبایا تو سیف خود بخود کھل گیا۔ سیف کے خانے میں ایک سرخ رنگ کا کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ اس نے فون پیس اٹھایا اور کمرے کے درمیان میں موجود میز کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر اس فون پیس کے نچلے حصے میں لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو 3 بار دبایا اور پھر تیزی سے مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کافی سارے نمبر پریس کر کے اس نے فون پیس کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کسی کے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رمیش بول رہا ہوں مادام P1۔ باس نے کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں اسپیشل کال کی ہے؟ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ مادام، یہاں کی کوئی اسپیشل فورس ہمارے مشن کے خلاف حرکت میں آ گئی ہے، لیکن یہاں کوئی بھی اس فورس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ باس نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا تو باس نے رابرٹ سے ملنے والی تفصیل دہرا دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اسے ٹریس کرنے کا کام سیٹ اسلم کے ذمے لگایا ہے۔ سیکرٹری وزارت خارجہ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہرحال تم اس فون پر موجود رہو، میں بھی تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کرتی ہوں، دوسری طرف سے مادام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو رمیش نے فون آف کر کے میز پر رکھ دیا اور پھر اٹھ کر وہ کھلے سیف کی طرف بڑھ گیا۔ سیف کے نچلے خانے میں شراب کی ایک بوتل اور ایک جام موجود تھا۔ اس نے بوتل اور جام اٹھائے اور انہیں ہلا کر میز پر رکھا اور پھر اطمینان سے شراب جام میں ڈال کر اس نے اسے چسکیاں لینا شروع کر دی۔ تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور رمیش نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام میز پر رکھا اور فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو مادام کالنگ، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد سخت تھا۔ یس، رمیش بول رہا ہوں مادام P1۔ رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسپیشل فورس کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ میرے آدمیوں نے سر سلطان کو آنے والی کالز کا ریکارڈ روم سے حاصل کر کے سنا ہے۔ ایک کال اسے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو کی طرف سے کی گئی ہے۔ کالز کی تفصیلات تو ٹیپ میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے فوراً بعد سر سلطان نے ڈائریکٹر جنرل سے بات کی ہے اور اس کے بعد ایک آدمی صدیقی کی کال بھی سر سلطان نے وصول کی، جس میں اس نے اپنا تعلق اسپیشل فورس سے بتایا ہے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسپیشل فورس کا تعلق کسی نہ کسی طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، مادام نے جواب دیا۔ لیکن مادام، سیکرٹ سروس کا تو ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ تو ان معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے، رمیش نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ مداخلت نہیں کیا کرتے؟ مادام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کئی سالوں تک کافرستان سیکرٹ سروس کا آفس میں کام کرتا رہا ہوں مادام، اور مجھے معلوم ہے کہ سیکرٹ سروس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے، رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے معاملات کے لیے الگ سے اسپیشل فورس بنا رکھی ہو، مادام نے کہا۔ تو پھر مادام، اب کیا کیا جائے؟ رمیش نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پلاننگ کے بجائے اب فائنل مشن پر عمل کر لینا چاہیے، مادام نے کہا۔ لیکن اس کے لیے تو ابھی رابطے ہی مکمل نہیں ہو سکے، ابھی بڑے بڑے بینکوں اور ان کی ایسی برانچوں میں انتہائی بھاری رقومات کا لین دین ابھی ہونا ہے، ہمارے آدمی تعینات نہیں ہو سکے۔ ایسی صورت میں فائنل مشن پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے مطلوبہ جعلی کرنسی بھی تو چاہیے، جو ابھی تک تیار نہیں ہو سکی، رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس فون پر رہو، میں چیف سے بات کر کے پھر تم سے بات کروں گی۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی مداخلت ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رمیش نے فون آف کیا اور اسے میز پر رکھ کر ایک بار پھر شراب کا جام اٹھا لیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور رمیش نے فون اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو مادام کالنگ، بٹن آن ہوتے ہی مادام کی آواز سنائی دی۔ یس مادام، میں رمیش بول رہا ہوں P1، رمیش نے کہا۔ چیف باس سے تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس یا اسپیشل فورس کی حرکت میں آنے کی اطلاع
چیف باس کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوئی ہے، کیونکہ چیف باس پاکیزہ سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ باس نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر مارکیٹ میں پھیلائی جانے والی جعلی کرنسی واپس لے لو اور اس وقت تک صرف رابطے کرو جب تک کہ رابطے مکمل نہ ہو جائیں اور فائنل مشن کے لیے مطلوبہ کرنسی چھپ کر تیار نہ ہو جائے، اور اس وقت تک اسپیشل فورس اور پاکیزہ سیکرٹ سروس بھی ٹکرے مار کر مطمئن ہو جائے گی۔ رابطے مکمل ہو جانے کے بعد اچانک فائنل مشن مکمل کیا جائے گا۔ چیف باس چاہتے ہیں کہ پورے پاکیزہ میں اس قدر جعلی کرنسی اچانک پھیلا دی جائے کہ پورے ملک میں معاشی زلزلہ آ جائے اور ملک معاشی طور پر مکمل تباہی سے دوچار ہو جائے۔ مادام نے کہا، لیکن یہ کب تک ہو سکے گا؟ اس کے لیے تو خاصی لمبی مدت چاہیے۔ رمیش نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، زیادہ لمبی مدت اب نہیں چاہیے۔ جزیرے میں نصب جعلی کرنسی تیار کرنے والی مشینیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ بعد تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے اور اس دوران رابطے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اور سنو، اب تمہاری وہاں ضرورت نہیں رہی۔ چیف باس سیٹھ اسلم اور دوسرے اپنے آدمیوں کو تفصیلی ہدایات خود ہی دے دیں گے تاکہ وہ رابطے مکمل کر لیں۔ فائنل مشن پر کام ہوگا تو پھر چیف باس، میں اور تم اکٹھے پاکیزہ پہنچ جائیں گے۔ مادام نے کہا، پھر تو یہاں کا اب تک کا بنایا ہوا تمام سیٹ اپ مجھے ختم کرنا ہوگا۔ رمیش نے کہا، ہاں، ابھی اور فوراً ختم کر کے ہیڈ کوارٹر رپورٹ دو۔ اگر تم پاکیزہ سیکرٹ سروس یا اس اسپیشل فورس کے ہاتھ لگ گئے تو پھر سارا منصوبہ ہی سامنے آ جائے گا۔ مادام نے کہا، ٹھیک ہے مادام، جیسے آپ کا حکم۔ رمیش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے فون آف کیا اور اسے اٹھا کر وہ دیوار میں موجود سیف کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے کار دارالحکومت کے مضافات میں واقع ایک نو تعمیر شدہ ہوٹل نوروز کے پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز قدم اٹھاتا مین وی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس ہوٹل کا ابھی حال ہی میں افتتاح ہوا تھا۔ انتہائی جدید ہوٹل تھا اور اس میں چند ایسی خصوصیات تھیں کہ دارالحکومت کا اعلیٰ طبقہ آج کل دارالحکومت کے باقی بڑے ہوٹلوں کی نسبت اسے ترجیح دے رہا تھا۔ اس وقت بھی ہوٹل کی پارکنگ رنگ برنگی اور نئے ماڈلوں کی چھوٹی بڑی کاروں سے بھری ہوئی تھی۔ حالانکہ ابھی شام نہ ہوئی تھی، لیکن یہاں رش ابھی سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ رات کے وقت تو یہاں وسیع اور عریض پارکنگ کے باوجود کار کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہ ملتی تھی، تو اکثر کاریں ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر ہی پارک کر دی جاتی تھیں۔ ٹائیگر مین گیٹ میں داخل ہونے کے بجائے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ہوٹل کی عمارت کے آخری حصے میں موجود سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اوپر والی منزل پر پہنچا تو وہاں 2 مسلح آدمیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ پرائیویٹ پورشن ہے جناب، آپ ہوٹل میں جائیں، ایک مسلح آدمی نے نرم سے لہجے میں کہا۔ میں نے مہربان سے ملنا ہے۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور مہربان نے مجھے یہاں کا باقاعدہ وقت دیا ہوا ہے۔ ٹائیگر نے بھی نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، دیا ہوگا جناب، لیکن یہاں ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کو ہوٹل میں ہی جانا ہوگا۔ صاحب وہاں وقت پر خود ہی پہنچ جائیں گے، اس مسلح آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اس کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ میں یہیں رک جاتا ہوں، تم مہربان کو میری آمد کی اطلاع دے دو۔ اگر اس نے کہا تو میں ہوٹل میں چلا جاؤں گا، ورنہ اس سے یہیں ملاقات کر لوں گا۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم معلوم کر لیتے ہیں، اس آدمی نے کہا، اور پھر اس کے کہنے پر دوسرا آدمی تیز قدم اٹھاتا اندرونی راہداری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ٹائیگر وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی واپس آ گیا۔ آئیے جناب، اس آدمی نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اندرونی راہداری میں ایک کمرے کے دروازے پر جا کر وہ مسلح آدمی رک گیا۔ تشریف لے جائیے جناب، مسلح آدمی نے کہا تو ٹائیگر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا، لیکن فرنیچر کی ساخت اور سیٹنگ کے لحاظ سے کمرہ ڈرائنگ روم لگتا تھا۔ ایک طرف پڑے ہوئے صوفے پر ایک بھاری جسم اور چوڑے چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا اور وہ بڑے اکڑے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر ایک نوجوان لڑکی نیم عریاں لباس پہنے ہوئے تقریباً اسے چمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ آدمی کان سے کارڈلیس فون لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔
उस आदमी ने टाइगर को अंदर दाखिल होते देखकर हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा, लेकिन वो बदस्तूर फोन पर बातें करने में मसरूफ रहा। टाइगर उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया। लड़की ने अपने सामने रखी हुई सेंट्रल टेबल पर मौजूद शराब की बोतल से खाली जाम में शराब निकाली और फिर उठकर उसने शराब का जाम टाइगर के सामने रखी हुई मेज पर रख दिया। लीजिए, शौक फरमाइए, लड़की ने बड़े लोचदार अंदाज में कहा। ले जाओ इसे, मैं शराब नहीं पीता, टाइगर ने इंतहाई सख्त और झटकेदार लहजे में कहा। तो लड़की के चेहरे पर यकलक इस तरह के तासुरात उभर आए जैसे उसने जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को शराब से इनकार करते हुए देखा हो। ये इम्पोर्टेड वाइन है और इंतहाई कीमती है। लोग तो इसके तसव्वुर में जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें नसीब नहीं होती, लड़की ने कहा। उसने शायद ये समझा था कि टाइगर ने शराब को मुकामी समझकर उसे पीने से इनकार कर दिया। जब मैंने कह दिया कि मैं शराब नहीं पीता तो फिर? टाइगर का लहजा और ज्यादा सख्त हो गया तो लड़की के चेहरे पर यकलक इंतहाई नागवारी के तासुरात उभर आए। उसने शराब का जाम उठाया और वापस ले जाकर अपने सामने वाली सेंट्रल टेबल पर रख दिया और एक बार फिर उस भारी वजूद वाले आदमी के जिस्म से चिपट कर बैठ गई। उस लम्हे उस आदमी ने फोन ऑफ किया और उसे सामने तपाई पर रख लिया। हाँ, अब बताओ क्या बात है टाइगर, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? बादशाह खान के फोन की वजह से मैंने तुम्हें मुलाकात का वक्त दे दिया है और यहाँ दाखिल होने की इजाजत दे दी है, लेकिन मेरे पास वक्त बेहद कम होता है, इसलिए जो कहना है जल्दी से कह डालो। उस आदमी ने बड़े तनखूस से लहजे में टाइगर से बात करते हुए कहा। इस लड़की को बाहर भेजो, मैंने तुमसे अहम बात करनी है, टाइगर ने भी सर्द लहजे में कहा। जो कुछ कहना है इसके सामने कह डालो, ये मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी है, मेहरबान ने मुंह बनाते हुए कहा। बादशाह खान को जाली करेंसी तुम सप्लाई करते हो? तुम्हें कौन सप्लाई करता है? टाइगर ने कहा तो मेहरबान यकलक एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेहरबान के सामने इस तरह बात करो? मेहरबान ने गुस्से से चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन दूसरे लम्हे खड़क की आवाज के साथ ही रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और लड़की चीखती हुई उठकर दरवाजे की तरफ भागी ही थी कि एक बार फिर खटक की आवाज सुनाई दी और लड़की के हल्क से एक तवील चीख निकली और वो उछल कर नीचे गिरी, बुरी तरह तड़पने लगी। ये दोनों फायर टाइगर ने किए थे। उसके हाथ में साइलेंसर लगा जदीद सख्त का रिवॉल्वर नजर आ रहा था। मेहरबान हैरत से आंखें फाड़े इस तरह टाइगर को देख रहा था जैसे अचानक उसकी आंखों की बिनाई चली गई हो। तुमने यहाँ फायरिंग की? ग्रेटा को मार डाला तुमने? मेहरबान ने रुक रुक कर कहा। इत्मीनान से बैठ जाओ वरना ग्रेटा की तरह तुम भी सोफे पर तड़पते हुए नजर आओगे। रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली किसी का लिहाज नहीं किया करती, टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो मेहरबान होंठ चबाता हुआ वापिस सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और उसकी नजरें टाइगर पर जमी हुई थी। तो तुम कौन हो? बादशाह खान ने तो बताया था कि तुम उसके दोस्त हो, लेकिन मेहरबान ने इस पर कदले संभले हुए लहजे में कहा। वो शायद अपने आप पर काबू पा चुका था, जबकि वो लड़की ग्रेटा सख्त पड़ी हुई थी। बादशाह खान तुम्हें फोन करने के बाद तुम्हारी इस ग्रेटा की पोजीशन में पहुंच चुका है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर तुमने कोई गलत हरकत की या मेरे सवाल का दुरुस्त जवाब ना दिया तो तुम्हारे साथ क्या सलूक हो सकता है, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। मेरा जाली करेंसी के धंधे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हें बादशाह खान ने यह बताया है कि मैं उसे जाली करेंसी सप्लाई करता हूँ तो उसने तुमसे झूठ बोला है, मेहरबान ने होंठ चबाते हुए कहा। बादशाह खान को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो मेरे सामने झूठ बोले। वो मेरे मुतालिक अच्छी तरह जानता था और चूंकि तुम मुझे नहीं जानते इसलिए मैं तुम्हारे इस झूठ को नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन अब अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा इंजाम इबरतनाक भी हो सकता है, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, मेहरबान ने कहा। दूसरे लम्हे खटक की आवाज एक बार फिर सुनाई दी और उसके साथ ही पहले पहलू के बल सोफे पर गिरा और फिर नीचे जा गिरा। उसी लम्हे टाइगर ने छलांग लगाई, उछल कर एक तरफ खड़ा हुआ ही था कि एक धमाके की आवाज सुनाई और गोली ठीक उस जगह सोफे से जा टकराई जहां एक लम्हे पहले टाइगर मौजूद था। दूसरे लम्हे खटक की आवाज के साथ ही सेंट्रल टेबल और सोफे के दरमियान मौजूद मेहरबान की हालत से भयानक चीख निकली और वो उछल कर खड़ा हुआ तो सेंट्रल टेबल उछल कर
2 फुट दूर जा गिरी और उस पर मौजूद शराब की बोतल और जाम लुढ़कते हुए दूर जा गिरे। मेहरबान अपने दाएं हाथ को पकड़े बुरी तरह नाच रहा था, क्योंकि टाइगर को मालूम था कि पहले जब उसने फायर किया था तो रिवॉल्वर मेहरबान के हाथ से निकलकर मेज और सोफे के दरमियान गिरा था, और अब जबकि उसने मेहरबान के झूठ बोलने पर फायर करके उसका कान उड़ाया तो मेहरबान मुड़कर सोफे पर जा गिरा और फिर पलट कर नीचे जा गिरा और लामेहाला वो रिवॉल्वर उठाकर उस पर फायर करेगा, इसलिए जैसे ही मेहरबान नीचे गिरा टाइगर ने उछल कर छलांग लगा दी, वरना वो वाकई हिट हो जाता। और अब इसने उसके हाथ पर फायर किया था जिसमें उसने रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था, और वो मेज के ऊपर से हाथ घुमाकर उस पर फायर करना चाहता था। पहले फायर से सिर्फ मेहरबान की कान की लू उड़ी थी, जबकि इस बार उसका हाथ बाकायदा जख्मी हुआ था और 2 उंगलियां भी फायर से उड़ गई थी, इसलिए वो कान का मामूली जख्म भूलकर हाथ पकड़े तकलीफ की शिद्दत से नाच रहा था। टाइगर ने कदम आगे बढ़ाई, लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से बेख्तियार कराह निकली और वो सीने पर मेहरबान के घूमते हुए बाजू की जोरदार जरब खाकर बेख्तियार उछलकर 2-3 फुट पीछे पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। मेहरबान ने वाकई इंतहाई महारत और फुर्ती से ये वार किया था। टाइगर को शायद अंदाजा ही ना था कि मेहरबान इस तरह अचानक हाथ घुमाकर उसके सीने पर जोरदार जरब लगा सकता है, इसलिए वो गफलत में मार खा गया। अचानक जरब लगने और उछलने की वजह से वो साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर कहीं दूर जा गिरा था। टाइगर के नीचे गिरते ही मेहरबान ने किसी ख्वाब की तरह उछलकर उस पर छलांग लगाई, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से ऐसी जोरदार चीख निकली और उसका भारी जिस्म हवा में कलाबाजियां खाता हुआ टाइगर के पीछे फर्श पर एक जोरदार धमाके से जा गिरा। मेहरबान को शायद मार्शल आर्ट के दाव पेश ना आते थे, वरना वो इस अंदाज में टाइगर के निचले हिस्से की तरफ उसके जिस्म पर छलांग न लगाता। टाइगर ने उस पर छलांग लगाते ही यकलख 2 टांगे समेत कर घुटने ऊंचे कर उसके पेट पर इस अंदाज में जरब लगाई थी कि वह हवा में उड़ता हुआ मेहरबान का जिस्म लामेहाला कलाबाजियां खाकर अकब में जा गिरा। उसके साथ ही टाइगर यकलख उछल कर खड़ा हुआ और उसके साथ ही टाइगर भी बिल्कुल मेहरबान ही के अंदाज में उस पर छलांग लगाई तो मेहरबान ने टांगे बिजली किसी तेजी से समेटी और उसे घुटने ऊपर को उठे, लेकिन टाइगर का जिस्म हवा में ही मुड़ गया और दूसरे लम्हे उसके दोनों पैर एक लम्हे के लिए मेहरबान के जिस्म की साइड पर जमीन पर लगी और वो किसी गेंद की तरह दूसरी तरफ उछला और इस बार उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से मेहरबान के दियो की तरह फैलते हुए सीने पर लगे और टाइगर उछलकर 2 फुट दूर जा गिरा। मेहरबान के हलक से इस कदर जोरदार चीख निकली कि कमरा काफी देर तक गूंजता रहा, लेकिन मेहरबान का चीख मारने के बाद एक झटके से सीधा हुआ और फिर साख्त हो गया। ऐन दिल पर लगने वाली टाइगर के पैरों की जर ने एक झटके से ही उसे होश से बेहोशी की वादी में धकेल दिया था। टाइगर तेजी से आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले जाकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए उसे ये तो फिक्र न थी कि मेहरबान की चीखें बाहर खड़े मुसल्ले अफराद सुन लेंगे, लेकिन उसे डर था कि किसी भी लम्हे इनमें से कोई आदमी अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता था, इसलिए उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा लॉक करके टाइगर वापस मुड़ा और उसने सबसे पहले अपना साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाला और फिर आगे बढ़कर उसने फर्श पर बेहोश पड़े मेहरबान को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और एक सोफानुमा कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसने मेहरबान की ही बेल्ट खोली और उसके दोनों हाथ उसके अकब में करके बेल्ट से अच्छी तरह बांध दिए। उसके बाद उसने मेहरबान के चेहरे पर एक के बाद दीगरे 2 जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चौथे या 5वें जोरदार थप्पड़ पर मेहरबान चीखता हुआ होश में आ गया तो टाइगर ने अपने कोट के अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकाल लिया। बोलो, कौन सप्लाई करता है तुम्हें जाली करेंसी? बोलो, टाइगर ने खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख कर दबाते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये धंधा नहीं करता। मेहरबान ने रुक रुक कर कहा तो टाइगर का हाथ यकलख बिजली की तेजी से हरकत में आया और एक बार फिर मेहरबान के हलक से निकलने वाली जोरदार चीख से कमरा गूंज उठा। टाइगर ने एक ही वार में सामने बैठे हुए मेहरबान की बाएं आंख का ढेला खंजर से काट दिया था। बंधे हुए मेहरबान का चंद लम्हे झटके खाता रहा, फिर ढीला पड़ गया और इसके साथ उसका सर एक तरफ ढिलक गया। उसकी जख्मी आंख से मवाद और खून बहकर उसकी गाल से होता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। टाइगर ने खंजर एक तरफ रखा और फिर एक हाथ से उसका सर पकड़कर सीधा किया और दूसरे हाथ से एक बार फिर उसकी गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस बार मेहरबान तीसरे थप्पड़ पर ही होश में आ गया और उसने होश में आते ही हलक के बल चीखना शुरू कर दिया। टाइगर ने पास पड़ा हुआ खंजर उठा लिया।
इस बार अगर तुमने झूठ बोला तो दूसरी आंख का भी यही हश्र होगा, बोलो वरना। टाइगर ने घुराते हुए कहा और साथ ही उसने खून आलूद खंजर मेहरबान की इकलौती आंख की तरफ लहराना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? तुम इंतहाई जालिम आदमी हो, तुम कौन हो? मेहरबान ने इस बार सिसकते हुए लहजे में कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो अब टाइगर से ज़हनी तौर पर बेहद खौफजदा हो गया है। फिक्र मत करो, मेरा ताल्लुक पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी से नहीं है। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और मेरी पार्टी भी इस मुल्क में जाली करेंसी का बड़े पैमाने पर धंधा करना चाहती है, और उसने मेरे जिम्मे ये काम लगाया है कि मुझसे भारी मामले की एवज़ी मालूमात मुहैया करूँ कि यहाँ कौन कौन पहले से इस धंधे में मुलविस है। मैंने सिर्फ मालूमात मुहैया करनी है बस। ये भी हो सकता है कि मेरी पार्टी ज्यादा मुआवजे पर तुम्हारी खिदमत हासिल करे। यही बात मैंने बादशाह खान को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मोटे दिमाग में ये बात आई ही नहीं, वरना मैं वो भी जिंदा रह जाता। और अब तुम भी ये सुन लो कि अगर तुमने सच ना बोला तो तुम्हारी लाश भी आज किसी गटर में तैरती हुई नजर आएगी। टाइगर ने कहा। ओ, तुम मुझे पहले बता देते, मेरी आंख जाया ना होती। मेहरबान ने कहा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जो कुछ सच है वो बोल दो, और ये जो सुन लो कि जो कुछ तुम बताओगे मैं इसे कंफर्म भी करूंगा। टाइगर ने कहा। मुझे जाली करेंसी की सप्लाई काफिस्तान से होती है। मेहरबान ने कहा तो टाइगर भी अख्तियार उछल पड़ा। किसके जरिए होती है या बराह रास्त? टाइगर ने पूछा। माल तो बराह रास्त आता है, लेकिन मुआवजा सेठ असलम के खास आदमी जानू के जरिए मिलता है। मेहरबान ने कहा और टाइगर उसके लहजे से ही समझ गया कि वो सच बोल रहा है। सेठ असलम कौन है? टाइगर ने पूछा। ट्वाइसलैंड का मालिक सेठ असलम, मेहरबान ने जवाब दिया। कितना माल आता है तुम किस तरह खपाते हो इसे? टाइगर ने पूछा। अभी माल थोड़ा आता है, लेकिन मुआवजा 4 गुना मिलता है, लेकिन ये माल हमें मार्केट में चलाने की इजाजत नहीं है, बल्कि हुक्म है कि माल को बैंक के जरिए चलाया जाए। बहरहाल मैं ये माल बादशाह खान और 2 और आदमी के हवाले कर देता हूँ, वो आगे चलाते हैं। 2 और आदमी कौन है? टाइगर ने पूछा। फेडरल बैंक का असिस्टेंट डायरेक्टर औसाफ और पाकिस्तान बैंक की मेन ब्रांच का हेड कैशियर बशीर, मेहरबान ने जवाब दिया। लेकिन बादशाह खान तो इस आमद माशों के जरिए मार्केट में चलाता रहा है। टाइगर ने कहा। नहीं, उसके जिम्मे शुमारी इलाके हैं, उसके वहां के बैंकों के आदमियों से राब्ते हैं। मेहरबान ने जवाब देते हुए कहा। तो वह जाली करेंसी किस तरह मौसूल होती है और कब कब होती है? टाइगर ने पूछा। फिलहाल तो हर माह की 10 तारीख को माल मिलता है। सेठ असलम का खास आदमी जानू मुझे कॉल करके कह देता है कि माल आ गया है, और मैं अपने खास आदमी भिजवा कर साहिल समंदर में वाक़े एक होटल रेड सी के मैनेजर से माल वसूल कर लेता हूँ। मैंने उससे पूछा था, उसने बताया कि ये माल खसूसी लॉज के जरिए काफिस्तान से आता है। इस तरह मुझे पता चला था कि माल काफिस्तान से आता है। जब माल मेरे पास पहुंच जाता है और मैं इसे तकसीम कर देता हूँ, तो मैं जानू को कॉल करके कह देता हूँ कि माल मिल गया है और तकसीम कर दिया गया है। तो 1 हफ्ते बाद जानू खुद मेरे पास आता है, मुझे मुआवजे की अदायगी कर देता है। मेहरबान ने कहा। आज 8 तारीख है, क्या अब भी 10 तारीख को माल आएगा? टाइगर ने पूछा। नहीं, मुझे जानू ने थोड़ी देर पहले ही फोन करके बताया था कि फिलहाल काम रोक दिया गया है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि सेठ असलम ने बताया है कि यहाँ कोई स्पेशल फोर्स सीक्रेट सर्विस इस माल के खिलाफ हरकत में आ चुकी है, इसलिए अभी धंधा बंद कर दिया गया है। मेहरबान ने कहा। आगे जो तुम माल देते हो उसका मुआवजा तुम अपने मुआवजे में से देते हो? टाइगर ने पूछा। नहीं, मुझे मेरा मुआवजा मिलता है, बाकी लोगों को अपना। ये सारा काम जानू ही करता है। मेहरबान ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें एक हफ्ते बाद मुआवजा क्यों दिया जाता है? क्या इसकी कोई खास वजह है? टाइगर ने पूछा। जानू चेक करता है कि मैंने पूरा माल आगे सप्लाई कर दिया है या नहीं, फिर मुआवजा देता है। मेहरबान ने कहा। ये जानू कहाँ रहता है? टाइगर ने पूछा। सेठ असलम का खास आदमी है, उसी के पास रहता होगा, मुझे तफसील का इल्म नहीं। मेहरबान ने जवाब दिया। तुम इस माल के वसूली की इतला फोन पर देते हो? टाइगर ने पूछा। हाँ, मेहरबान ने जवाब दिया। किस नंबर पर? क्या उसका नंबर इलादा है? टाइगर ने पूछा। नहीं, ट्वाइसलैंड के नंबर पर रिंग करता हूँ, अपना नाम बताता हूँ, कहता हूँ कि जानू से बात करा दो, और फिर जानू से बात हो जाती है। मेहरबान ने कहा। फोन उठाओ और जानू से मेरे सामने बात करो। अब मैं तुम्हारी बताई हुई बातें कंफर्म करना चाहता हूँ। टाइगर ने कहा। लेकिन मैं उसे क्या कहूँ? मेहरबान ने कहा। उसे पूछो कि अब माल कब आएगा, कोई हतमी तारीख, बस ऐसी ही बात करो। बस ऐसी बात करो जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि जो कुछ तुमने मुझे बताया है वो दुरुस्त है। टाइगर ने कहा। मेरे हाथ खोलो तो मैं फोन करूं? मेहरबान ने कहा। तुम नंबर बताओ, मैं मिला देता हूँ। जब मेरी पूरी तसल्ली हो जाएगी फिर तुम्हारे हाथ खोल दूंगा। टाइगर ने तो पाई पर रखे हुए कार्डलेस फोन को उठाते हुए कहा, तो मेहरबान ने नंबर बता दिए। टाइगर ने फोन ऑन करके मेहरबान के बताए हुए नंबर प्रेस किए और दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनकर उसे लाउड का स्पीकर ऑन कर दिया और फोन भी मेहरबान के कान से लगा दिया। घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी, फिर रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनाई दी। ट्वाइसलैंड, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मेहरबान बोल रहा हूँ नौरोज होटल से, जानू से बात कराओ।
मेहरबान ने सख्त लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जानू बोल रहा हूँ। चंद लम्हे बाद एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। आवाज से यूं लग रहा था जैसे बोलने वाला मुंह में सीटी रखकर बोल रहा हो। मेहरबान बोल रहा हूँ जानू, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि क्या अब आइंदा मार आने का कोई स्कोप भी है या ये धंधा ही खत्म कर दिया गया है? मेहरबान ने कहा, आएगा लेकिन अभी नहीं, 1 माह बाद आएगा, और इतना आएगा कि अगली पिछली सारी कसरें निकल जाएंगी। जानू ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इतने माल की खपत कैसे होगी? मार्केट में तुम फैलाने नहीं देते। मेहरबान ने कहा, फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। जानू ने जवाब दिया, ओके, बस यही पूछ रहा था। मेहरबान ने कहा तो टाइगर ने फोन ऑफ करके उसे वापस सफाई पर रख दिया। इस जानू का क्या हुलिया है? टाइगर ने पूछा तो मेहरबान ने आम सा हुलिया बता दिया। कोई खास निशानी बताओ, ये तो आम सा हुलिया है। टाइगर ने कहा, उसका दायां कान आधे से ज्यादा कटा हुआ है, बस यही खास निशानी है। मेहरबान ने कहा तो टाइगर उठ कर खड़ा हो गया। उसने साथ रखा हुआ खंजर उठाकर उसे सोफे से साफ किया और फिर उसे अपने कोट की जेब में रखकर उसने इस साइड जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया। ये क्या? मेहरबान ने रिवॉल्वर देके ही चौंक कर कहा, लेकिन इससे पहले कि फुकरा मुकम्मल करता, खटक की आवाज के साथ ही गोली मेहरबान के दिल में उतरती चली गई। मेहरबान के हलक से हल्की चीख निकली और फिर वो पहलू के बल नीचे गिरा और फिर उलट कर नीचे फर्श पर जा गिरा। उसके बाद वो चंद लम्हे ही तड़प सका और फिर सख्त हो गया। टाइगर ने उसके हाथ में बंधी हुई बेल्ट खोली और उसे एक तरफ फेंक कर तेजी से मुड़ा और तेज कदम उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। एक बड़े से कमरे में एक मेज के गिर्द 4 कुर्सियां रखी हुई थी। उनमें से 3 कुर्सियों पर 2 मर्द और एक औरत बैठी हुई थी, जबकि चौथी कुर्सी खाली थी। कमरे में इस मेज और कुर्सियों के अलावा और किसी किस्म का कोई फर्नीचर न था। कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था। वो तीनों इस तरह खामोश बैठे हुए थे जैसे उनका एक दूसरे के साथ तारुफ ही ना हो। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर स्याह रंग का कोट था और उसके चेहरे पर भी स्याह रंग का नकाब लगाया हुआ था। आंखों पर स्याह ऐनक थी और हाथों में स्याह दस्ताने। उसके अंदर दाखिल होते ही वह तीनों मौदमाना अंदाज में उठकर खड़े हो गए। बैठे, आने वाले ने भारी आवाज में कहा और फिर खुद भी खाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि दोनों मर्द और औरत भी वापस कुर्सी पर बैठ गए। ये मीटिंग इसलिए कॉल की गई है कि फाइनल मिशन के बारे में हतमी मनसूबाबंदी कर ली जाए। आने वाले ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चीफ बॉस, क्या फाइनल मिशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? इस औरत ने कहा, हाँ मादाम शैला, हमने दिन रात एक करके तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चीफ बॉस ने कहा, क्या पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स और सीक्रेट सर्विस भी आउट ऑफ फील्ड हो चुकी हैं? मादाम शैला ने दोबारा सवाल करते हुए कहा, हाँ, हमारे वहाँ चंद आदमी उन्होंने ट्रेस कर लिए, जिनमें सेठ असलम, मेहरबान और इस सिलसिले के तमाम अफराद शामिल थे। इस तरह शुमाली इलाकों के लिए हमने जो सेटअप सेठ असलम के जरिए बनाया था वो भी ख़त्म हो गया है और इस सेटअप के भी तमाम अफराद ऑफ कर दिए गए हैं। सेठ असलम के अलावा पाकिस्तान में हमारे 4 अहम आदमी और थे, वो चारों भी कवर कर लिए गए। इस तरह वो मुतमईन हो गए और अभी गुज़श्ते 1 हफ्ते से उनकी किसी सरगर्मी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन हमने फौरी तौर पर एक मुतबादल सेटअप कायम कर लिया जो पहले से ज्यादा कामयाब सेटअप है। इस नए सेटअप में हमने पाकिस्तान के बैंकों के मुलाजमीन की इंतहाई अहम यूनियन से गठजोड़ कर लिया है और इस यूनियन के तमाम अहदेदारों के जरिए पाकिस्तान के अहम तरीन बैंकों के हेड कैशियर्स को इंतहाई भारी मुआवजे देकर कवर कर लिया गया है। इसलिए अब फाइनल मिशन आसानी से और जल्दी मुकम्मल किया जा सकता है, चीफ बॉस ने कहा। यस चीफ बॉस, मैडम शैला ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जबकि बाकी दूसरे 2 आदमी खामोश बैठे रहे थे। उन्होंने कोई बात ना की थी। फिर चीफ बॉस इन दोनों आदमियों से मुखातिब हुआ ही था कि अचानक मेज पर मौजूद फोन की घंटी जोर से बज उठी और चीफ बॉस समेत मौजूद सब अफराद उछल पड़े। चीफ बॉस ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस चीफ बॉस स्पीकिंग। चीफ बॉस ने सख्त लहजे में कहा, आरमन बोल रहा हूँ। मुझे अभी इत्तला मिली है कि प्रीतम दास को कुछ लोग अचानक अगवा करके ले गए हैं और उसे अगवा करने वाले स्पेशल फोर्स के लोग हैं, क्योंकि उनके हुलिये जो बताए गए हैं वो वही हैं जो इससे पहले सेठ असलम को अगवा करके ले गए थे।
दूसरी तरफ से तेज आवाज सुनाई दी। वो शायद फितरी तौर पर चीख कर बोलने का आदी था, इसलिए उसकी आवाज चीफ बॉस के साथ बैठे हुए बाकी तीनों तक भी बखूबी पहुंच रही थी। वेरी सैड, उस तक कैसे हाथ पहुंच गया उनका? चीफ बॉस ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। उसका चेहरा तो नजर न आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर साफ महसूस हो रहा था कि इस कॉल ने उसे इंतहाई परेशान कर दिया था। चीफ बॉस, मैंने उस पॉइंट पर फौरी जो तहकीक की है उसके मुताबिक ये काम जानू की वजह से हुआ है। जानू सेठ असलम के साथ अटैच था। सेठ असलम की गिरफ्तारी के वक्त जानू काफिरिस्तान गया हुआ था। इसे वहां इतला मिल गई थी तो वो वहीं आपके पास रुक गया। फिर आपने जानू को प्रीतम दास के साथ कैच करके भिजवा दिया। जानू उनके हाथ लग गया और जानू की वजह से वो प्रीतम दास तक पहुंच गए। और चीफ बॉस, प्रीतम दास को फाइनल मिशन के बारे में भी सब कुछ इल्म है और इस जजीरे के बारे में भी जहां काम हो रहा है। आरवन ने कहा। प्रीतम दास को पाकिस्तान में होने वाले सेटअप का तो इल्म है, लेकिन उसे जजीरे के बारे में तो कोई इल्म नहीं, इसलिए खतरा सेटअप का है तो हम इसे फौरी तौर पर ट्रेस करके हलाक नहीं कर सकते। चीफ बॉस ने कहा। मेरे आदमी मुसलसल उसे तलाश कर रहे हैं चीफ बॉस, और जैसे ही इसका सुराग मिला हम हर कीमत पर वहां रेड कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद मेरी दरख्वास्त है कि आप जजीरे पर रेड अलर्ट का ऐलान कर दें। आरवन ने कहा। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन प्रीतम दास की गिरफ्तारी से हमें इंतहाई शदीद धचका लगा है। अब हमारा फाइनल मिशन कामयाब नहीं हो सकता। अब हमें तवील अरसे तक कैमोफ्लाज होना पड़ेगा। ओके, तुम उसे ट्रेस करके हलाक कर दो और मुझे रिपोर्ट दो, चीफ बॉस ने कहा और इसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। पाकिस्तान में हमने जो सेटअप किया था वो एक लिहाज से खत्म हो गया है। इस सेटअप का करता धरता प्रीतम दास था, जिसे हमने वहाँ एक बहुत बड़े मजदूर लीडर के तौर पर एडजस्ट किया हुआ था। ओके, अब मीटिंग बर्खास्त। आप सबको अलग-अलग अहकामात आइंदा के लिए मिल जाएंगे। चीफ बॉस ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। चीफ बॉस, क्या इस स्पेशल फोर्स के खिलाफ वहाँ पाकिस्तान में काम नहीं हो सकता ताकि उसका कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए? मादाम शैला ने कहा। हो तो सकता है, लेकिन मैं यहाँ से किसी ऐसे आदमी को वहाँ नहीं भेजना चाहता जिससे हेडक्वार्टर्स ट्रेस हो जाए, चीफ बॉस ने कहा। अब मुझे इजाजत दें, मैं और मेरा ग्रुप वहाँ जाकर उनका खात्मा कर देते हैं, मादाम शैला ने कहा। नहीं मादाम शैला, तुम्हें हेडक्वार्टर का भी इल्म है और उस जजीरे का भी, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अलबत्ता आरवन के खदशे की पेश नजर अब हमें वाकई इस जजीरे पर रेड अलर्ट करा देना चाहिए और ये काम तुम और तुम्हारा ग्रुप करेगा। तुम फौरी तौर पर उस जजीरे का बैरूनी कंट्रोल संभाल लो। अंदरूनी कंट्रोल वैसे ही सरदार सिंह के पास रहेगा, जबकि सखदेव की कार्रवाई प्रेस और करेंसी तक ही महदूद रहेगी, चीफ बॉस ने कहा। बॉस, जो करेंसी फाइनल मिशन के लिए तैयार की गई है, अब उसका क्या होगा? सखदेव ने कहा। उसे सील्ड करके हेडक्वार्टर पहुंचा दो, और क्या हो सकता है, जब हालात दोबारा साजगार होंगे तो फिर ये मिशन मुकम्मल किया जाएगा। मैं हुकूमत को रिपोर्ट दे दूंगा, चीफ बॉस ने कहा। कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और वो तेजी से मुड़ा दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो तीनों चीफ बॉस के उठते ही उठ खड़े हुए थे और चीफ बॉस के बाहर जाने के बाद वो फिर बैठ गए। मादाम शैला, अब आप कब आ रही हैं बटाम आइलैंड पर? सखदेव ने चीफ बॉस के जाने के बाद मुस्कुराते हुए मादाम शैला से मुखातिब होकर कहा। चीफ बॉस के हुक्म की फौरी तामील होगी। मैं कल अपने ग्रुप समेत बटाम आइलैंड पहुंच जाऊंगी, मादाम शैला ने भी मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहा। आपका ग्रुप कितने अफराद पर मुश्तमिल है मादाम शैला? दूसरे आदमी सरदार सिंह ने पूछा। 25 आदमी है मेरे ग्रुप में। क्यों, तुमने क्यों पूछा है? मादाम शैला ने चौंक कर पूछा। इसलिए मादाम कि आपको बटाम की बैरूनी हिफाजत का हुक्म दिया गया है और अंदरूनी हिफाजत बदस्तूर मेरे पास रहेगी। इस सूरत में अगर आप और आपके ग्रुप की तादाद 10 के करीब होती तो हम आपके और आपके ग्रुप की बटाम में रिहाइश गाहों का बंदोबस्त कर लेते, लेकिन 25 अफराद की रिहाइश गाहों की तो हमारे पास जगह भी नहीं है, और दूसरी बात यह कि इस तरह मेरे इंतजामात में भी दखलअंदाजी होगी, सरदार सिंह ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे जहन में बैरूनी हिफाजत का क्या प्लान है? मेरी समझ में तो चीफ बॉस की बात नहीं आई। बैरूनी हिफाजत का क्या मतलब है? सखदेव ने कहा। फर्ज करो पाकिस्तान स्पेशल फोर्स या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या वहाँ के इंटेलिजेंस या किसी भी सरकारी एजेंसी को ये मालूम हो जाता है कि बटाम में खुफिया मशीनें नस्ब करके पाकिस्तान की जाली करेंसी छापी जा रही है, जिसे पाकिस्तान में फैलाकर उनकी मईशत मफलूज करने का मंसूबा है, तो लामहला उन्होंने कोशिश करनी है कि या तो इस जजीरे को ही तबाह कर दिया जाए या फिर कम अज कम इन मशीनों
और इस करेंसी को ही तबाह कर दिया जाए। इस सूरत में अगर वो अचानक जजीरे पर वारिद हो जाते हैं तो सरदार सिंह के आदमी क्या करेंगे, कितने अफराद को मारेंगे। बैरूनी हिफाजत से चीफ बॉस का मकसद यह है कि हम वहाँ ऐसे ही इंतजाम करें कि कोई भी एजेंसी बटाम तक पहुँच ही ना सके। इस सिलसिले में साइंसी इंतजाम भी हो सकते हैं और दूसरे भी, मादाम शैला ने जवाब देते हुए कहा। ऐसी सूरत में तो तुम और तुम्हारा ग्रुप बटाम में न ठहर सकेगा, सरदार सिंह ने कहा। जाहिर है हमने बटाम से बाहर ही ठहरना है, साथ ही दूसरे जजीरे हैं, उनमें से किसी पर हम अपना हेडक्वार्टर बना लेंगे, मादाम शैला ने जवाब देते हुए कहा। वशाकू आइलैंड ऐसे मामलात के लिए बेहतरीन रहेगा। वशाकू आइलैंड भी हमारे ही कंट्रोल में है। वहाँ अंडरग्राउंड स्टोर्स बनाए गए हैं ताकि अगर कभी ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि करेंसी को बटाम से निकालना पड़े तो इसे वहाँ स्टोर किया जा सके, लेकिन अभी तक इसकी नौबत नहीं आई, इसलिए स्टोर्स खाली हैं। इसके अलावा वहाँ ऊपर केबल भी मौजूद है जो खाली है। आप और आपका ग्रुप वहाँ रिहाइश रख सकता है और वहाँ ऑपरेशन हेडक्वार्टर भी कायम हो सकता है। और वशाको आइलैंड का मोहल्ले वकू ऐसा है कि इसके करीब से गुजरे बगैर बटाम तक नहीं पहुंचा जा सकता, सखदेव ने कहा। लेकिन अगर वो काफिरिस्तान की तरफ से आएंगे तो बहरहाल वो बराह रास्त बटाम पहुंच जाएंगे। सिर्फ बैनुल अक़वामी समंदर से बटाम पहुंचने के लिए वशाको से गुजरना पड़ता है, और जरूरी तो नहीं कि एजेंसी के लोग बैनुल अक़वामी समंदर से ही बटाम आए। वो पाकिस्तान से काफिरिस्तान और फिर काफिरिस्तान से बटाम पहुंच सकते हैं, सरदार सिंह ने कहा। इसकी आप फिक्र न करें, वो कहीं से भी गुजरे, इतला बहरहाल हमें मिल जाएगी। ये जजीरे माहीगीरों की रेंज से भी बाहर हैं और समंदरी रास्तों से भी दूर हैं, इसलिए इधर ना ही माहीगीरों की कश्तियां आती हैं और ना ही लॉन्चें और ना ही जहाज इधर से गुजरते हैं। इसलिए मैं बटाम के गिर्द 20 किलोमीटर के फासले तक चारों तरफ अलार्मिंग सिस्टम कायम कर दूंगी कि जब भी कोई इंसान या कोई लॉन्च इसे क्रॉस करेगी, न सिर्फ वशाको में हमें इत्तला मिल जाएगी बल्कि हम इन्हें मशीन पर मार्क भी कर सकेंगे और वहां से इन्हें खत्म भी कर सकेंगे। मेरा ग्रुप ऐसे कामों में मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता है, मादाम शैला ने जवाब दिया। ठीक है, ये इंतजाम शानदार है, लेकिन मादाम एक बात बता दूं, मैंने सुन रखा है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दुनिया की इंतहाई खौफनाक सर्विस है। इसे आज तक अपने किसी मिशन में नाकामी नहीं हुई और खास तौर पर इस सर्विस का लीडर अली इमरान दुनिया का खौफनाक तरीन एजेंट है। कर्नल फरीदी का तो नाम सुना ही होगा तुमने, सखदेव ने कहा। कर्नल फरीदी तो बहुत अजीम सीक्रेट एजेंट है, मादाम शैला ने कहा, और ये इमरान भी इसी टाइप का एजेंट है। अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बटाम के खिलाफ काम करने आई तो फिर इस टीम का लीडर अली इमरान होगा। इसलिए जो कुछ करना है ये सोच कर करना कि तुम्हारा मुकाबला किन लोगों से हो सकता है, सखदेव ने कहा। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है, मादाम शैला ने कहा। मैं कर्नल फरीदी की ब्लैक फोर्स में काम कर चुका हूँ, लेकिन मेरा काम ऑफिस तक ही महदूद था, लेकिन मैंने बहरहाल इमरान और इसके साथियों के नाम उनसे सुने हुए हैं, सखदेव ने कहा। पहली बात तो यह है कि सीक्रेट सर्विस का ये काम नहीं है कि वो जाली करेंसी के पीछे मारी मारी फिरती रहे, और अगर आ ही गई तो फिर इसे शायद पहली बार मालूम होगा कि उसका मुकाबला किससे पड़ा है। मैंने एक्रीमिया से बाकायदा तरबियत ली हुई है और मेरा पूरा ग्रुप एक्रीमिया से तरबियत याफ्ता है। तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसे इंतजाम करूंगी कि इमरान तो इमरान, अगर कर्नल फरीदी भी मेरे मुकाबले पर आ जाए तो मौत उसका मुकद्दर बनेगी, मादाम शाला ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। गुड, तुम्हारा एतमाद बता रहा है कि चीफ बॉस ने तुम्हारा और तुम्हारे ग्रुप का इंतखाब दुरुस्त किया है, लेकिन बहरहाल मोहतात रहने में क्या हर्ज है, सखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, अब मैं पहले से ज्यादा मोहतात रहूंगी, मादाम शैला ने कहा। ओके, फिर आप कल सीधी बटाम आ जाएं, मैं आपको खुद साथ वशाकू ले जाऊंगा, सखदेव ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्यों, मैं खुद वशाकू नहीं पहुंच सकती, मादाम शैला ने भी उठते हुए मुस्कुरा कर कहा। इस तरह मुझे 1-2 रातों तक तुम्हारी मेजबानी करने का मौका मिल जाएगा, सखदेव ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो मादाम शैला और सरदार सिंह दोनों बेख्तियार हंस पड़े। सरदार सिंह, तुम्हारी मेजबानी और मेरे मेहमान होने से नाराज ना हो जाए, वरना तो ये भी हो सकता है कि मेरा ग्रुप वशाकू में रहे और मैं बटाम में, मादाम शैला ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सखदेव ने तुम्हारे मितालों के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं क्यों नाराज हूँगा। सखदेव मेरा भाई है और इस लिहाज से तुम मेरी भाभी हो, सरदार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, इतना बड़ा रिश्ता भी कायम नहीं हुआ और ना हो सकता है, बस मेजबानी और मेहमानी तक ही बात रहनी चाहिए, मादाम शैला ने कहा। तो सखदेव और सरदार सिंह दोनों एक बार फिर हंस पड़े। फिर वो दरवाजा खोलकर आगे पीछे चलते हुए कमरे से बाहर आ गए।
इमरान ने कार जैसे ही 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर की पोर्च में ला कर रोकी, बरामदे में मौजूद सदीकी, नुमानी, चौहान और खाबर मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगे। इमरान कार से बाहर आ गया। वाह, आज तो 4 स्टार्स इकट्ठे ही जगमगा रहे हैं, इमरान ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान साहब, आज 4 स्टार्स ने वाकई जगमगाने वाला काम किया है, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, क्या बैटरी खरीद ली है? इमरान ने कहा और सब इख्तियार हंस पड़े। किसी बैटरी से इतनी रोशनी कहाँ पैदा हो सकती है जितनी आज आपको हमारे चेहरे पर नजर आ रही है, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर शायद कोई जनरेटर आ गया है तुम्हारे हाथ, इमरान ने कहा और सब इख्तियार हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वो सब एक तहखाने में पहुंच गए जहाँ एक कुर्सी पर एक लंबे कद और दरमियाने जिस्म का आदमी रॉड्स में जकड़ा हुआ बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और गर्दन ढिलकी हुई थी। वो बेहोश था। ये वो जनरेटर है इमरान साहब जिसने जगमगाहट पैदा कर दी है, सदीकी ने कहा और फिर उसने एक कुर्सी घसीट कर इमरान की तरफ बढ़ा दी। कौन है ये? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए गौर से इस आदमी को देखते हुए कहा। इसका नाम मासूम अली है, मुल्क का बहुत बड़ा मजदूर लीडर है, पूरे पाकिस्तान की बैंकों की मुलाजमीन की मुत्तहदा यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी है, सदीकी ने जवाब दिया तो इमरान भी इख्तियार चौंक पड़ा। बैंक मुलाजमीन की मुत्तहदा यूनियन, और ये इस जाली करेंसी के सिलसिले में मुलविस है शायद, इमरान ने कहा तो सदीकी ने भी इख्तियार इस बात में सर हिला दिया। आपकी जहानत का वाकई जवाब नहीं इमरान साहब, वरना हमारा मुतफक्का ख्याल था कि आपको जब तक तफसील न बताई जाएगी आप इस बात को ना समझ सकेंगे, लेकिन आप बैंक का लफ्ज सुनते ही असल बात की तह तक पहुंच गए, सदीकी ने कहा। फुल स्टार ना सही, ट्विंकल स्टार सही, बहरहाल स्टार तो हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। फुल स्टार ना सही, ट्विंकल स्टार सही, बहरहाल स्टार तो हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आपके टाइगर ने नौरोज होटल के मेहरबान के बारे में जो रिपोर्ट दी थी, इसमें 2 नाम सामने आए थे, एक जानू का और दूसरा सेठ असलम का। जानू सेठ असलम का खास आदमी था। आपके हुक्म पर हमने सेठ असलम को उठाया, लेकिन जानू हमें ना मिल सका। सेठ असलम ने यहाँ इस तहखाने में आपके सामने जबान खोल दी थी और इस तरह काफिस्तान का पूरा सेटअप सामने आ गया, और फिर 4 स्टार्स ने इस पूरे सेटअप में शामिल अफराद का खात्मा कर दिया। इस तरह जाली करेंसी का केस एक लिहाज से खत्म हो गया। सेठ असलम ये बात ना जानता था कि काफिस्तान से जाली करेंसी कौन भिजवाता है। जानू के मुतालिक उसने बताया था कि उसका ताल्लुक भी काफिस्तान से है और वो काफिस्तान गया हुआ है। इस तरह जानू ना आस्का और ना बात आगे बढ़ सकी, लेकिन 4 स्टार्स इस जानू को तलाश करती रही। फिर अचानक खावर को इत्तला मिली कि इसको पाकिस्तान में देखा गया है। ये इत्तला खावर को सेठ असलम की एक दोस्त ने दी थी जो जानू की एक दोस्त के बारे में जानता था। जानू की दोस्त लड़की का नाम आसिया है, वो एक फ्लैट में रहती है। उसका फ्लैट भी इस बिल्डिंग में है जिसमें आसिया का फ्लैट है। इसने जब आसिया के फ्लैट से एक आदमी को निकलते देखा जिसका कदो कामत जानू जैसा था, लेकिन उसका हुलिया बदला हुआ था, तो वो समझ गया कि यह दर हकीकत जानू ही होगा, क्योंकि आसिया इसकी दोस्त थी और जानू के अलावा आज तक और किसी आदमी को आसिया के फ्लैट में आते हुए ना देखा गया था। जानू का बारे में इत्तला देने पर खावर ने इस आदमी को भारी इनाम देने का वादा कर लिया था, इसलिए उसने खावर को इस बारे में इत्तला दे दी। खावर ने हमें बताया और हमने आसिया के फ्लैट की खुफिया निगरानी शुरू कर दी, और फिर 2 रोज की निगरानी के बाद आखिरकार जानू वहां आ गया। उसका हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा था, लेकिन कदो कामत बहरहाल जानू जैसा ही था। जब वो आसिया के फ्लैट में चला गया तो हमने इस फ्लैट में बेहोश करने वाली गैस दरवाजे पर बने हुए ताले के सुराख से फायर कर दी और वह दोनों अंदर बेहोश हो गए। तो हमने मास्टर की से दरवाजा खोला और अंदर मौजूद इस आदमी को उठाकर साथ खाली फ्लैट में ले आए। यहाँ हमने फिर चेकिंग का सामान पहले से ही रखा हुआ था। चनाचे मेकअप वॉशर से जब इसका चेहरा वॉश किया गया तो मेकअप गायब हो गया और अंदर से असल जानू निकल आया। जब हमें यकीन हो गया कि यही जानू है तो हम फ्लैट के अकबी रास्ते से इसे बाहर निकाल लाए और फिर कार में डालकर यहाँ ले आए। यहाँ आकर जब जानू से पूछगिछ की तो शदीद और खौफनाक तशद्दुद के बाद आखिरकार इसने जुबान खोल दी। इसने बताया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी मजहबी तंजीम से है जो मुसलमानों के दुश्मन नंबर 1 है और इस लिहाज से वो वकीशा की तबाही चाहती है। इस सियासी पार्टी के तहत एक खुफिया तंजीम बनाई गई है। इस तंजीम के सरबराह को चीफ बॉस कहा जाता है, जो नकाब में रहता है, कोई भी इसकी असलियत के बारे में नहीं जानता। उसके तहत वकीशा को माशी तौर पर तबाह करने का एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया गया है और इस तंजीम ने पाकिस्तान की समंदरी हदूद में 2 जजीरों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें से एक जजीरे का नाम बटाम
और दूसरे जजीरे का नाम वशाकू है। गैर ममालिक से इंतहाई जदीद मशीनरी लाकर जजीरे बटाम में नस्ब की गई है, जहां पाकिशा की जाली करेंसी धड़ाधड़ छापी जा रही है और स्टोर की जा रही है। और प्लानिंग यह है कि इस जाली करेंसी को पाकिशा के फेडरल बैंक और बड़े बड़े बैंकों की इंतहाई मारूफ शाखों में मुकम्मल तौर पर भर दिया जाए और अगर असल पाकिशा करेंसी वहां से निकाल ली जाए। इस तरह ये जाली करेंसी इन बैंकों के जरिए पूरे पाकिशा में तेजी से फैल जाएगी। ये चक्कर चलता रहेगा, असल करेंसी गायब होती जाएगी और इसकी जगह जाली करेंसी ले लेगी। जब ये करेंसी 75% हो जाएगी तो अचानक इतला कर दी जाएगी कि करेंसी जाली है। तमाम बैंकों इस करेंसी को लेने से इनकार कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि पाकिशा की मईशत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगी, बल्कि तबाह हो जाएगी और हुकूमत को फौरी तौर पर ये जाली करेंसी मार्केट से लेकर असल करेंसी देना पड़ेगी। लेकिन बैंक से भी असल करेंसी गायब हो चुकी होगी और इसकी जगह भी वहां यही जाली करेंसी मौजूद होगी। चुनांचे हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाएगी और नतीजा पाकिशा की मुकम्मल तबाही की सूरत में निकलेगा। इस प्लानिंग के तहत पहले थोड़ी थोड़ी जाली करेंसी यहाँ चलाई गई ताकि इसका रिजल्ट देखा जा सके। ये काम सेठ असलम के जरिए होता रहा। उसके साथ साथ सेठ असलम के जरिए बैंक के अहम आदमियों को भी खरीदा जाने लगा और जाली करेंसी तजुर्बे के तौर पर बैंकों के जरिए चलाने का काम शुरू किया गया। लेकिन फिर स्पेशल फोर्स हरकत में आ गई और सेठ असलम और इसके सेटअप के तमाम अफराद पकड़े गए। जनरल चौका काफिस्तान गया हुआ था, इसलिए जब वहां इतलात पहुंची तो इस तंजीम में से वहीं रोक लिया। इसके बाद नए सिरे से मनसूबाबंदी की गई और इस काम के लिए एक दूसरे आदमी को तैनात किया गया जिसका असल नाम प्रीतम दास था। और इस बार यह मनसूबा बनाया गया कि प्रीतम दास को बैंक मुलाजमीन के किसी मजदूर लीडर की जगह दिलाई जाए और फिर बैंक के लोगों को इसके जरिए खरीदा जाए और फिर प्रीतम दास ने यहाँ आकर वाकई खुफिया मुलाजमीन की एक लीडर की जगह ले ली और अपनी खुफिया सरगर्मियों की मदद से इसने बैंकों के तमाम अहम अफराद को खरीद लिया। जानू को प्रीतम दास के साथ काम करने के लिए मेकअप में वापस भेज दिया गया और बकौल जानू ये सारा सेटअप अब मुकम्मल होने के करीब है और फाइनल मिशन किसी भी लम्हे हो सकता है। चुनांचे इसकी निशानदही पर इस मजदूर लीडर को अगवा किया गया और ये मजदूर लीडर आपके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है। बज़ाहिर इसका नाम मासूम अली है, लेकिन दर हकीकत इसका नाम प्रीतम दास है, जबकि जानू को हलाक कर दिया गया है। सदीकी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, वेरी गुड, फिर तो वाकई तुम्हारे चेहरों पर जगमगाहट की मौजूदगी तुम्हारा हक बनता है। इमरान ने तहसीन भरे लहजे में कहा, इमरान साहब, इस प्रीतम दास से भी हमने पूछगिछ मुकम्मल कर ली है। इसने इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। सदीकी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। पूछगिछ मुकम्मल कर ली है? वाह, मगर इस पर तशद्दुद के आसार तो नजर नहीं आ रहे। इमरान के लहजे में हकीकी हैरत थी। ये काम खावर ने किया है, उसने तशद्दुद का एक जदीद अंदाज सीख लिया है। ऐसा तशद्दुद के इसके असरात बज़ाहिर नजर नहीं आते। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो खावर भी अख्तियार मुस्कुरा दिया। अच्छा, वो क्या? इमरान ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, इमरान साहब, इसने कदीम अफ्रीकी कबाइल पर लिखी गई एक मताले के दौरान ये पढ़ा था। कदीम दौर के अफ्रीकी पुजारी से आम इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो ये तरीका दूसरों या सरदारों के करीबी अजीजों पर ही इस्तेमाल करते थे। सरदारों या सरदारों के करीबी अजीजों पर वो तशद्दुद नहीं कर सकते थे। उनके ख्याल के मुताबिक सरदारों और सरदारों के करीबी अजीजों को देवताओं का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था। तरीका बिल्कुल सीधा साधा है, लेकिन है इंतहाई मौसर। इसके मुताबिक नारियल के पानी की पिचकारी इंसान के दोनों नथों में इस तरह मारी जाए कि ये पानी इसके दिमाग से होता हुआ इसकी हलक से निकल जाए, तो इसके असरात से इस आदमी का जहन माऊफ हो जाता है और वो हर शय बताने पर मजबूर हो जाता है जिसके जहन में मौजूद होती है। मौजूदा दौर के मुताबिक इसका शऊर माऊफ हो जाता है और लाशऊर में तहरीक पैदा हो जाती है और वो सब कुछ बताता चला जाता है, जबकि इसे इसका शऊर भी नहीं होता। मैंने ये तरीका पढ़ा तो पहले तो मुझे यकीन ना आया। इस बार मैंने ये तरीका प्रीतम दास पर आजमाने का फैसला किया। आजकल नारियल आम मिल जाते हैं, चुनांचे मैंने नारियल का पानी लेकर इसकी पुचकारी के जरिए इस प्रीतम दास की नाक में डाल दिया। वो मुझे यकीन न था, लेकिन नतीजा हैरत अंगेज निकला। जब मैंने इस प्रीतम दास से ये सवालात पूछे तो ये सब कुछ इस तरह बताता चला गया जैसे टेप चल रही हो। इस पानी का असर तकरीबन आधे घंटे तक रहा। इसके बाद इसका शऊर दोबारा जाग उठा और फिर मैंने चेक किया तो इसे सीधे से मालूम ही ना था कि उसने कुछ बताया भी है या नहीं। मैंने जानबूझकर दोबारा वही सवाल किए तो इसने इसके दास्ता गलत जवाब दिए। कावर ने तो तफसील बताते हुए कहा,
गुड शो, इसका मतलब है कि नारियल का पानी शऊर पर कोई ढीली सी चढ़ा देता होगा और इसके साथ ही लाशऊर को तहरीक भी देता होगा। वेरी गुड, ये वाकई मेरे लिए नई बात है। कौन सी किताब में तुमने पढ़ा ये तरीका? इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ये एक कलमी नुस्खा है, लातीनी जुबान में है। ये मुझे किताबों के कबाड़िए से मिला था। इसमें कलमी तस्वीरें भी बनी हुई थी, इसलिए कबाड़िए ने इसे लहदा रखा हुआ था। मुझे चूंकि कदीम जुबानें पढ़ने का शौक है, इसलिए मुझे कुछ कुछ लातीनी जुबान भी आती है। मैंने वो किताब खरीद ली, खावर ने जवाब दिया। गुड, वेरी गुड। अम्मी बताने की जरूरत तो नहीं है कि लातीनी जुबान मुझे भी आती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो खाबर के साथ साथ सब इख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, बुजुर्ग तो यही कह रहे हैं कि जो किताब दूसरे को पढ़ने के लिए देता है वो अहमक है, और जो लेकर वापस कर देता है वो इसलिए बड़ा अहमक है। खाबर ने कहा तो कमरा कहकों से गूंज उठा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक प्रीतम दास की कराह सुनाई दी। जो सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। उसे होश आ रहा था। इसे दोबारा बेहोश कर दो और पहले मुझे बताओ कि इसने क्या इंकशाफात किए हैं। इमरान ने कहा तो सदीकी सर हिलाता हुआ उठा और इसे बेहोश होते हुए प्रीतम दास की कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक मारा तो ये प्रीतम दास के हलक से घुटी घुटी से चीख निकली। उसकी गर्दन एक बार फिर ढील गई और आधी खुली आंखें दोबारा बंद हो गई। वो एक बार फिर बेहोश हो गया था। हाँ, अब बताओ कि इसने क्या बताया है? इमरान ने सदीकी के वापस कुर्सी पर आकर बैठते ही कहा। इमरान साहब, प्रीतम दास के मुताबिक पाकीशा के फेडरल बैंक समेत तमाम अहम बैंकों के अहम ब्रांचों के कैशियर और चौकीदारों को इससे खरीद लिया है। बटाम नजीर पर जो जाली करेंसी तैयार हो रही है वो सारी करेंसी एक ही रात में इन बैंकों के स्टॉक्स में पहुंचा दी जाएगी और असल करेंसी वहां से निकाल ली जाएगी। इस तरह दूसरे रोज तमाम जाली करेंसी पूरे मुल्क में फैला दी जाएगी। इसके बाद भी जो असल करेंसी बैंकों का वसूल होगी इसे भी जाली करेंसी में तब्दील कर दिया जाएगा। फेडरल बैंक के महफूज स्टॉक को भी इस दौरान तब्दील कर दिया जाएगा और इसके बाद पूरे मुल्क में ये खबर ओपन कर दी जाएगी कि मुल्क में जाली करेंसी मौजूद है। जाहिर है अवाम में सारी करेंसी लेकर बैंकों की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन जब सब बैंक से वसूल करने से इनकार कर देंगे और फिर मुल्क में माशी तूफान आ जाएगा। हुकूमत ज्यादा से ज्यादा अपने महफूज स्टॉक ओपन करके करेंसी तब्दील करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब हुकूमत को मालूम होगा कि महफूज स्टॉक में भी जाली करेंसी है तो जाहिर है मुल्क पर इंतहाई तबाहकुन माशी असलात मुरतब होंगे। तमाम खरीदो फरोख्त रुक जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, तो बगावत हो जाएगी, गल्ले के गोदाम और दुकानें लूट ली जाएंगी, मुल्क शदीद अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा और यही मौका होगा जब काफिरस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान का माशी निज़ाम और हुकूमत मफलूज हो चुकी होगी, इसलिए काफिरस्तान आसानी से पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। सदीकी ने कहा तो इमरान के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी का तासुरात उभर आए। वेरी गुड, तो ये लोग यहाँ पाकिस्तान में कागजी कयामत बर्पा करना चाहते हैं। इमरान ने कहा। जी हाँ, और बकौल प्रीतम दास इसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतहाई वसी पैमाने पर जाली करेंसी तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ हेडक्वार्टर की तरफ से एक तारीख मुकर्रर होनी है और इसके बाद इस तबाही का आगाज हो जाएगा। सदीकी ने कहा, इसका मतलब है कि इस बार तुम लोगों ने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, ये सारी तफसील मालूम करने के बाद हमने आपको फोन किया था, क्योंकि अब ये बात बहरहाल तय हो गई है कि हमें फौरी तौर पर इस बटाम जजीरे पर रेड करना होगा ताकि वहां मौजूद इस जाली करेंसी को तबाह कर दिया जाए, वरना तो ये लोग कुछ अरसा ठहर कर दोबारा यही प्लानिंग कर सकते हैं और यहाँ के भी इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना होगा जिन्हें तबाहकुन मंसूबे के लिए प्रीतम दास ने अपने साथ शामिल कर रखा है। सिद्दीकी ने कहा, यहाँ के लोगों को तो इंटेलिजेंस गिरफ्तार कर लेगी, हमें इस जजीरे पर रेड करना है, फौरी करना है, क्योंकि इस प्रीतम दास की गिरफ्तारी का इल्म इन्हें हो गया होगा और हो सकता है कि वो मार इस जजीरे से फौरी तौर पर किसी और जगह शिफ्ट कर दे। इमरान ने कहा और बाकी दोस्तों ने इस बात में सर हिला दिए। इन आदमियों की लिस्ट तैयार की गई है जो इस प्रीतम दास के साथ शामिल हैं। इमरान ने पूछा। उसने ज़बानी तो चुनना बताए हैं, लेकिन चौहान और नुमानी ने उसकी रिहाइशगाह की तलाशी लेकर वहां से एक फाइल हासिल कर ली है। इस फाइल में मुकम्मल नाम वगैरह और इन्हें दिए गए मुआवजों के बारे में पूरी तफसील मौजूद है। सदीकी ने कहा और इसके साथ ही इसने नुमानी को इशारा किया तो नुमानी उसके कमरे से बाहर निकल गया। इसे इस जजीरे के बारे में तफसीलात हासिल कर ली है तुमने? इमरान ने पूछा। जी नहीं, अभी तो हमने इसे पाकिस्तान में इसके सेटअप के बारे में मालूमात हासिल की है, सदीकी ने जवाब दिया। तो फिर खाबिर वाला नुस्खा आजमाओ और वहाँ के बारे में जो कुछ जानता है इसे मालूम करो। इस दौरान मैं सुपर प्यास के साथ मिलकर पहले यहाँ के गद्दारों को कवर कर लूं। इमरान ने कहा और इसी लम्हे नुमानी वापस आया तो इसके हाथ में एक फाइल मौजूद थी। इमरान ने इसके हाथ से फाइल ली और उसे खोल कर देखने लगा। फाइल देखते हुए इसकी आंखों में हैरत उभर आई। गुड शो, वाकई तुमने कारनामा सर अंजाम दिया है
तुम इससे मालूमात हासिल करो, हमें मजीद कार्रवाई की प्लानिंग कर ली जाएगी। इमरान ने उठते हुए कहा। इमरान साहब, एक दरख्वास्त है आपसे। सदीकी ने भी उठते हुए कहा। दरख्वास्त क्या? तुम हुक्म दे सकते हो, आखिर तुम 4 स्टार्स के चीफ हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप बेशक यहाँ के लोगों को इंटेलिजेंस के जरिए गिरफ्तार करा दें, लेकिन इस जजीरे पर रेड 4 स्टार्स ही करेगी और इस मिशन को मुकम्मल भी 4 स्टार्स ही करेगी। सदीकी ने कहा। लेकिन 4 स्टार्स का काम तो सिर्फ पकीशे के अंदर तक महदूद है। मुझे ये सारी रिपोर्ट चीफ को देनी होगी और हो सकता है कि चीफ ये केस 4 स्टार से सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफर कर दे, क्योंकि मंसूबे के मुताबिक अब ये केस बनता ही सीक्रेट सर्विस का है। इस मंसूबे से मुल्क की सलामती को खतरात लाहिक हुए हैं। इमरान ने कहा। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि यही बात हमारे जहनों में भी थी। चीफ को तो जाहिर है रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी और इस जजीरे पर रेड करने की इजाजत भी लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि चीफ ने रिपोर्ट लेने के बाद यह केस 4 स्टार से लेकर सीक्रेट सर्विस को शिफ्ट कर देना है और फिर आप सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और जूलिया को साथ लेकर वहां रेड करने चले जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप किसी तरह चीफ को इस बात पर रजामंद कर लें कि ये केस 4 स्टार से मुकम्मल करें। सदीकी ने कहा। ठीक है, तो फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी चीफ ने केस सीक्रेट सर्विस को दे दिया तो फिर भी सीक्रेट सर्विस की टीम तुम चारों पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि टीम के इंतखाब का हक चीफ ने मुझे दिया हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सबके चेहरे भी इख्तियार खिल उठे और इमरान मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुपर फयाज अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। सुपर फयाज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सुपर फयाज ने आदत के मुताबिक रोबदार लहजे में कहा। मेरे ऑफिस में आओ, अभी और इसी वक्त। दूसरी तरफ से सर अब्दुर्रहमान की गूंजदार आवाज सुनाई दी। यस सर, यस सर, सुपर फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने रिसीवर क्रडल पर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एक तरफ स्टैंड में टंगी हुई अपनी मखसूस कैप उतार कर उसने सर पर एडजस्ट की और अपने ऑफिस से निकल कर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ डायरेक्टर जनरल के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। साहब का मूड कैसा है? सुपर फयाज ने बाहर खड़े चपरासी से आहिस्ता से पूछा। साहब गुस्से में हैं, चपरासी ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। गुस्सा तो हर वक्त इनकी नाक पर धरा रहता है, फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर पर्दा उठाकर वो अंदर दाखिल हुआ। मैं आई कम इन सर? फयाज ने दरवाजे पर रुक कर कहा। कम इन। सर अब्दुर्रहमान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा और फयाज तेजी से आगे बढ़ा और फिर मेज के करीब जाकर उसने बाकायदा सल्यूट किया। बैठो, सर अब्दुर्रहमान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा और फयाज मेज की साइड पर मौजूद उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो हमेशा बैठता था। अलबत्ता उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो कुर्सी की नशिस्त के आगे वाले सिरे पर ही टिका हुआ है। जाली करेंसी के सिलसिले में तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, इसकी आला हकाम ने बेहद तारीफ की है। सर अब्दुर्रहमान ने इस बात का नरम लहजे में कहा तो सुपर फयाज का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। सर, ये सब आपकी सरपरस्ती का नतीजा है सर, फयाज ने खुशामदाना लहजे में कहा। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि तुम किसी भी बड़े केस में बज़ाहिर तो काम करते नजर नहीं आते, तुम्हारी फाइल खाली ही रहती है, लेकिन फिर अचानक तुम रेड करते हो और यकलख तमाम बड़े बड़े मुजरिम और उनके पूरे ग्रुप्स को गिरफ्तार कर लेते हो। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे काम कोई दूसरा करता है और फिर आखिरी लम्हात में वो तुम्हें आगे कर देता है। सर अब्दुर्रहमान ने कहा तो फयाज चौंक पड़ा। नो सर, मैं खुद ही करता हूँ सर। दरअसल मेरी आदत है कि मैं इस वक्त तक मिशन को सवाई अपने और किसी पर ओपन नहीं करता जब तक कि मिशन तकमील के आखिरी मरहले पर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों में से ही कोई मुजरिमों को इत्तला पहुंचा दे। मुजरिम तो ये कोशिश करते ही रहते हैं कि यहाँ से किसी न किसी को खरीद लें। सुपर फयाज ने जवाब देते हुए कहा। गुड, ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन तुम मेरे बारे में भी यही समझते हो कि मैं भी मुजरिमों के हाथों बिक सकता हूँ? सर अब्दुर्रहमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह नो सर, मैं ये मतलब नहीं था सर, लेकिन सर आपकी जुबानी बात तो नहीं की जा सकती, आपको तो तहरीरी रिपोर्ट देनी जरूरी होती है और मैं चाहता हूँ कि जब तक आपको रिपोर्ट दी जाए तो वो मुकम्मल और फाइनल रिपोर्ट दी जाए। सुपर फयाज ने जल्दी से कहा। ठीक है, बहरहाल मुझे आम खाने से गर्ज है,
एक और केस मुझे रेफर किया गया है और ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके तुमने इसे मुकम्मल करना है, क्योंकि हुकूमत इस सिलसिले में बेहद परेशान है। सर अब्दुर्रहमान ने सामने रखी हुई फाइल उठाकर फयाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। सुपर फयाज ने फाइल लेते हुए कहा, बैंक मुलाजमीन की यूनियन के एक अहम लीडर मासूम अली को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। पुलिस अब तक इस बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकी, जबकि बैंक मुलाजमीन की यूनियन ने हुकूमत पर जबरदस्त दबाव डाल रखा है कि जल्द अज जल्द इस लीडर को बरामद किया जाए और मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, वरना पूरे पाकिस्तान के बैंकों में हड़ताल कर दी जाएगी। और तुम जानते हो कि बैंकों की हड़ताल से मुल्क को किस कदर माशी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत ने यह केस हमारे महकमे को ट्रांसफर कर दिया है और साथ ही उन्होंने हुक्म दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर इस लीडर को जिंदा या मुर्दा बरामद किया जाए और मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए केस फौरी नौयत का है और तुम्हें इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करना होगा, और इसके साथ साथ तुम मुझे रोजाना रिपोर्ट दोगे कि तुमने क्या किया है। सर अब्दुर्रहमान ने खुश्क लहजे में कहा, यस सर। सुपर फयाज ने जवाब दिया, जाओ और फौरी काम शुरू कर दो। सर अब्दुर्रहमान ने कहा तो सुपर फयाज खड़ा हुआ, उसने सलाम किया और फिर फाइल उठाए तेजी से कदम उठाता सर अब्दुर्रहमान के ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि उसे भी एहसास था कि ये केस इंतहाई फौरी नौयत का है। लेकिन ये बात भी वो जानता था कि पहले जाली करेंसी के केस में भी उसने इमरान को इंतहाई भारी मुआवजा दिया था, और अब अगर इमरान से बात की तो उसने एक बार फिर भारी मुआवजा तलब कर लेना है। वो यही बात सोचता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो दूसरे लम्हे बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि इमरान वहाँ मौजूद था। तुम कब आए? सुपर फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा, अभी आया हूँ, और तुम्हारे चपरासी ने बताया है कि तुम डैडी के ऑफिस गए हुए हो। मैं समझ गया कि डैडी ने तुम्हें तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी देने के लिए बुलाया होगा। आखिर तुमने जाली करेंसी के सिलसिले में इंतहाई अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। अखबारात तुम्हारी कारकर्दगी की तारीफों से भरे पड़े हैं। खास तौर पर सेठ असलम की गिरफ्तारी और उसका असल चेहरा सामने लाने पर तो आला हुकाम ने भी तुम्हारी बेहद तारीफें की हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डैडी ने न सिर्फ जुबानी तारीफ पर ही टका दिया है, बल्कि साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि काम कोई और करता है और क्रेडिट तुम्हें मिल जाता है। सुपर फयाज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मुंह बनाकर कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि हुकूमत ने सेंट्रल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल तुम जैसे आदमी को बनाना था? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? सुपर फयाज ने चौंक कर कहा, मतलब ये कि इस कदर अहम तरीन महकमे का डायरेक्टर जनरल किसी अहमक को तो नहीं बनाया जा सकता। इमरान ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अहमक हूँ? क्यों? सुपर फयाज ने फंकारते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तुम अहमक हो? अगर तुम अहमक होते तो मेरी तरह जूतियां चुड़खाते फिरते नजर आते। तुम्हारी तारीफें तो सारा प्रेस कर रहा है, फिर बैंकों के लॉकर और अकाउंट दौलत से भरे पड़े हैं। क्या ये सब कारनामे किसी अहमक के हो सकते हैं? इमरान ने कहा तो सुपर फयाज का बिगड़ा हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। कौन कहता है कि तुम अहमक हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। फयाज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप डैडी ने कोई नया केस दे दिया है जो मेरी तारीफें हो रही हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुपर फयाज बेख्तियार हंस पड़ा। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटे ने कहां से जहानत हासिल कर ली है, हर बात पेशगी ही समझ जाते हो। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। ये देखो फाइल, और साथ ही हुक्म है कि हर सूरत में 1 हफ्ते में इस केस को मुकम्मल होना चाहिए। अब तुम खुद बताओ कि मेरे पास आला दीन का चिराग तो नहीं है कि मैं इसे रगड़ूं और जिनको कह दूं कि मुजरिमों को पकड़ कर मेरे सामने ले आए। सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा, वो पुराने जमाने का जिन होगा जो बगैर किसी मुआवजे के काम कर देता होगा। वो दौर सस्ता था और आम लोग तो एक तरफ जिन भी सारी जिंदगी गुजारते थे, अब तो जिन भी पहले मुआवजा लेता है फिर काम करता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने फाइल खोली और उसे सरसरी तौर पर देखने लगा। उसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई थी। फिर वही मुआवजा, कि तुम्हारा पेट भी भरता है या नहीं? फयाज ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा, इस जाली करेंसी वाले केस में तुमने कितना मुआवजा दिया था? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, कम नहीं दिया था, पूरे 50 लाख रुपए तुमने वसूल कर लिए हैं।
पूरे 50 लाख, और 50 लाख बड़ी रकम होती है, समझे? सुपर फयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। तुम्हारे लिए होती होगी, मुझ जैसे मकरूज आदमी के लिए तो ये बड़ी रकम एक तरफ सिरे से रकम ही नहीं कहलाई जाती। 50 लाख, 50 लाख से क्या बनता है? इमरान ने कहा तो फयाज उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? तो क्या तुम पर इतना कर्जा है कि जो लाखों में है? क्या करते हो तुम? क्या सोने की डालियां खाते हो? फयाज ने हुस्ले लहजे में कहा तो इमरान भी अख्तियार हंस पड़ा। तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हारे सारे फालतू अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है। तुम्हें सरकारी तौर पर खानसामा मिला हुआ है, चौकीदार मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है, 2 घरेलू मुलाजिम मिले हुए हैं। तुम्हारा मेडिकल का तमाम खर्चा हुकूमत के जिम्मे है। तुम्हारी कार का पेट्रोल, तुम्हारे फोन का बिल, बिजली का बिल सब हुकूमत अदा करती है। कोठी भी सरकारी है। फिर तुम्हें बीवी भी इंतहाई सलीका शार, सुघड़ और सीधी साधी मिली हुई है। इसलिए तुम्हें क्या मालूम कि आजकल कितनी महंगाई है, मुलाजमीन की तनख्वाहें कहाँ जा पहुंची हैं, पेट्रोल पर कितना खर्चा आता है, बिजली के बिल और उस पर लगे हुए सरचार्ज कहाँ पहुंच जाते हैं। तुम अपने 50 लाख को रो रहे हो? इमरान ने कहा। कुछ भी कर लो, 50 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं है, समझे? मुझे यकीन है कि वो सुलेमान तुम्हें अहमक बनाए रखता है। वो इंतहाई शातिर और चालाक आदमी है। फयाज ने कहा। तुम्हारी बात ठीक है, वो वाकई बेहद शातिर और चालाक है। अब देखो, जैसे ही उसे मालूम हुआ कि तुमने मुझे 50 लाख रुपए दिए हैं, वो 2 दुकानों के उधार के बिल उठाकर आ गया। और तुम यकीन करो, मुझे तुम्हारे 50 लाख रुपए के साथ और पैसे भी देने पड़े। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। 2 दुकानों के बिल, 50 लाख रुपए से ज्यादा? कौन सी 2 दुकानें हैं वो? मुझे उनका पता बताओ। 50 लाख को तो दोनों दुकानों में माल नहीं होगा, फयाज ने तेज लहजे में कहा। मैंने उसे तफसील पूछी थी, पता है क्या जवाब मिला था? इमरान ने कहा। क्या जवाब दिया था उसने? सुपर फयाज ने चौंक कर पूछा। उसने कहा था कि वो उधार डैडी के नाम पर ले आता है, क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं। अगर तफसील पूछनी है तो फिर वो उन दुकानदारों को डैडी के पास ले जाएगा। इमरान ने कहा। देखा, मैं कहता हूँ कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। कार से पकड़कर निकाल दो इसे। सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। कई बार कार से पकड़ने की कोशिश की है, फिर वही डैडी की बात ले आता है। शायद मालूम नहीं कि वो हमारे घर में बचपन से पला बड़ा है, और अम्मा भी तो एक तरफ, डैडी भी इसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि मुझसे भी नहीं करते। वो कोशिश चला जाए तो डैडी भी उससे इस तरह प्यार करते हैं कि मैं आज तक ऐसे लहजे के लिए तरसता रहा हूँ। इमरान ने जवाब दिया। तो ये बात है। मेरे हाल ठीक है, तुम जानो। और वो ये फाइल तो तुमने देख ली है, अब बताओ कि तुम इस बारे में मेरी क्या मदद कर सकते हो? फयाज ने कहा। जाहिर है, सर अब्दुर्रहमान की बात दरमियान में आ जाने के बाद अब वो इस बारे में मजीद क्या कह सकता था। ये तो मामूली सा केस है, किसी इंस्पेक्टर के जिम्मे लगा दो, वो खुद ही काम कर लेगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम इसे मामूली कह रहे हो? उधर बैंक मुलाजमीन पूरे मुल्क के बैंकों में हड़ताल का नोटिस दे चुके हैं, और अगर बैंकों में हड़ताल हो गई तो तुम जानते हो मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। फयाज ने तेज लहजे में कहा। ओह, ये तो वाकई मसला है। चलो तुम ऐसा करो कि अपनी दौलत का वारिस मुझे बना दो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी दौलत से न सिर्फ तुम्हारा शानदार मजार बनाऊंगा, बल्कि वादा करता हूँ कि हर साल उस पर उर्स भी होगा, कवालियां भी होंगी। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ कि क्या करना है इसका। मुझे हर सूरत में 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुजरिम भी चाहिए, और ये लीडर भी, जिंदा या मुर्दा हालत में। फयाज ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। हफ्ता तो बहुत दूर है, अगर तुम हुक्म करो तो अभी और इसी वक्त ये लीडर बरामद हो सकता है। इमरान ने कहा तो फयाज बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? क्या इसे तुमने अगवा कर रखा है? फयाज ने कहा तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, अब तुमने यही कहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कारकर्दगी की धाक बैठा दूं डैडी पर और आला हुकाम पर, और तुम मुझ पर ही उलट रहे हो। इमरान ने कहा। क्या वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो? मगर ये कैसे मुमकिन है? फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये शख्स जिसका नाम फाइल में मासूम अली दर्ज है, दरअसल उसका नाम प्रीतम दास है और एक काफिस्तान का बाशिंदा है।
اصل मासूम अली की तो लाश भी अब तक शायद घर सड़ चुकी होगी और ये इसी जाली करेंसी केस के सिलसिले का बकिया हिस्सा है। इस प्रीतम दास ने मासूम अली की जगह लेकर इंतहाई खौफनाक खेल खेला है। इसने फेडरल बैंक और पाकिस्तान के तमाम अहम बैंकों की अहम ब्रांचों के कैशियर और चौकीदारों को भारी मुआवजे देकर खरीद लिया है, क्योंकि ये बैंक मुलाजमीन के यूनियन का लीडर था, इसलिए इसके राब्ते सबसे आसानी से हो सकते थे। और उनका फाइनल मिशन ये था कि इन बैंकों हत्ता के फेडरल बैंक के महफूज स्टॉक से असल करेंसी एक ही रात में निकाल कर वहाँ जाली करेंसी रख देते और फिर यही जाली करेंसी मार्केट में इन बैंकों के जरिए फैल जाती और इसके साथ साथ जो असल करेंसी बैंक लेन देन के तहत बैंकों में पहुंचती वो भी एक ही रात में बदल दी जाती कि इसके बाद पूरे मुल्क में ये बात फैला दी जाती कि पूरे मुल्क में जाली करेंसी फैली हुई है। जाहिर है इस बात के फैलते ही लोग वही जाली करेंसी उठाकर बैंकों की तरफ दौड़ पड़ते, लेकिन बैंक जाली करेंसी लेने से इनकार कर देते। इस तरह मुल्क में माशी तूफान बर्पा हो जाता। हुकूमत हालात को संभालने के लिए अपने महफूज स्टॉक से असल करेंसी निकाल कर फैलाने की कोशिश करती तो वहां से भी जाली करेंसी ही बरामद होती। इसके बाद क्या होता ये तुम जैसा आदमी भी समझ सकता है। पूरे मुल्क में हर किस्म का लेन देन खत्म हो जाता, लोगों को खाने के लिए रोटी तक ना मिलती। नतीजा कि लोग भूखे मरते दुकानों और गल्ले के गोदामों को लूटना शुरू कर देते। इन हालात में अगर पाकिस्तान हमला कर देता तो फिर क्या होता? इमरान ने तफसील बताते हुए कहा तो फयाज की आंखें हैरत और खौफ से फैलती ही चली गई। ओह, इस कदर खौफनाक मंसूबा! ओह, ये तो पूरे पाकिस्तान की तबाही है। ये तो इंतहाई खौफनाक तबाही पैदा करने का मंसूबा है, फयाज ने कहा। और अब तुम खुद सोचो, जब तुम इस मंसूबे को मुकम्मल होने से पहले ही ट्रेस कर लो और ना सिर्फ प्रीतम दास तुम्हारे कब्जे में आ जाए बल्कि वो सब लोग जो इस मंसूबे में शामिल हैं सबको तुम गिरफ्तार कर लो और वो सब एतराफ़े जुर्म कर लें तो फिर क्या होगा? डैडी तुम्हें क्या कहेंगे और अखबारात और आला हुकाम तुम्हारे बारे में क्या राय देंगे? तुम तो पाकिस्तान के हीरो बन जाओगे। तुम जहाँ से गुजरोगे अवाम तुम्हें सलाम करेगी, तुम पाकिस्तान के निजात दहिंदा बन जाओगे। इमरान ने कहा तो फयाज के एसाब फरते मुसरत से बेख्तियार फड़कने लगे। ओह ओह, कहाँ है वो आदमी, कहाँ है, जल्दी बताओ, फयाज ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। लेकिन ये सब कुछ तो तुम्हें मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जो तुम कहोगे मिलेगा इमरान, खुदा के लिए प्लीज जल्दी बताओ। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मेहरबान दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है, प्लीज इमरान, फयाज ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। खाली दोस्ती से काम नहीं चलेगा सुपर फयाज, ये काम तो पहले काम से भी बड़ा है और फिर फौरी भी हो रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो इमरान, तुम पेशी की बात ना किया करो, बस तुम काम कर दिया करो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। बस मुझे तुम्हारी इसी बात पर गुस्सा आता है कि तुम बाकायदा ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हो, फयाज ने कहा। सोच लो, ये काम तुम्हारे किसी इंस्पेक्टर के जरिए भी कराया जा सकता है और जब वो इंस्पेक्टर डैडी के सामने अपना कारनामा पेश करेगा तो फिर तुम कहाँ नजर आओगे? इमरान ने कहा।